Hope my screen is visible to all. So Digital Edge Premier Edge is a premier institute, and Digital Edge is a digital marketing institute dedicated to shaping future-ready professionals, renowned for its highest placement record. We offer comprehensive course designed to equip students with cutting-edge skills in digital marketing. Our experts faculty, industry-focused curriculum, and real industry exposures ensures unmatched training quality and practical learning. And why Digital Edge? This is very important. At Digital Edge, our digital marketing curriculum is meticulously crafted to align with global industry standards, ensuring top tier education for our students. Our seasoned industry experts provide invaluable insights and mentorship, guiding students towards success. With strong industry tie ups, students gain real world experience through internships, seamlessly bridging the gap between academia and the industry. Additionally, our dedicated placement cell works tirelessly to equip every student with the necessary tools and support to secure employment opportunity that match their aspirations and skill sets. Now, talking to the advantage of the digital edge, uh, our curriculum are a global curriculum, global industry curriculum. Our curriculum aligns with the global industry standards, offering relevant and up-to-date education for aspiring professionals worldwide. Whether you belongs to any India or any other country, or you are planning to work in any corner of this world, this curriculum has got you covered. Senior industry trainers benefit from guidance and mentorship provided by seasoned industry experts with extensive experience in digital marketing and practical knowledge. All our trainers are very senior people from the industry. They are the real industry people who have years of experience working and handling multiple situations, multiple problems, and coming up with the solutions. So they will be training you on the real industry scenario. Now, live projects gain practical exposures through immersive live projects, allowing you to develop confidence and proficiency in real world scenario. Uh, we have our own digital marketing agency. We are working with hundreds of clients and facing lots of challenges. So all the students gain exposure of all the projects that we are handling. They're allowed to work in their final like semester or final uh, durations. They work with a live project and they gain the real insights of the industry situations. Real industry internship, we allow our students to work on the real industry projects, and they get certificate from the industry that they have gained the experience for the same. And last not the least, we have the guaranteed placement support. It is like we have a very dedicated placement cell where our team works tirelessly with all the students from very beginning of the class. From the day one, the placement department works with you. They prepare you for like soft skills, communication skills, which is very much important. How to write your CV, how to apply for a job, and not only that, they will give you an opportunities after the program. They will arrange interviews for all of you who are looking for a job in the digital marketing industry. And this is our responsibility. And we are proud to say that we have a great placement record with us, and we have been able to place all our students in industry, and some of them are working at a very great position in the industry. Coming next, our edge of the entire program. Uh, First, AI, artificial intelligence. We all talk about artificial intelligence nowadays, but what is the difference with our AI? If we talk about AI, generally we understand that AI is just like Chat GPT or Midjourney or Google Gemini or similar image video editing softwares or the platform. But AI is not limited to this. AI is much more advanced than what we know about AI, and that we have inculcated in our program. uh, Suppose that take an example that you are going to work for a client, and client is launching a product in the market, and the client has approached you for like planning a complete digital marketing strategy for him. So it's not like that you will just write a content or create a design or social media design or the video for the client. It's like you will design a marketing strategy, and how you can do this. You have to research the data, you have to research the audience, who are the audience, who are the target audience, where the product can be sold, and what should be the best marketing strategy for them.
So just not limited to few tools. It's more to the like data analytics. It's more like the analysis of the market, strategy analysis, and AI is very much helpful in this because AI is very much trained nowadays, and you can use these tools to create a complete foolproof marketing strategy, and which can earn revenue for the client, and obviously you will earn out of that also. And second one is very much important, real industry internship. As we told you, we are also a digital marketing agency working with hundreds of the clients. And so you will get a real exposure of working on the live projects. There's a big difference in working on dummy projects and working on live projects. If you're working on dummy projects, you don't face problems. You just implement your theoretical knowledge in the practical world. But when you face the real industry challenges, there are lots of problems coming in every situation, every topic. And at that time, you will be able to handle, or you will learn how to cope up with the situation, how to handle the real problems and come up with the solutions. So these two are the edge of the digital age, and we are training our students very well. It's a complete program. Now, how this program will help you? I'm talking about the wide range of people who are either looking for a new job, or just they are business owner or freelancer, whatever they are. So they all can get benefited from this program. First, like if you want to launch your career, like this program has got you covered. I will get very strong foundation of your subject domain knowledge with the practical exposures. And even if you are like business owner, you want to increase your revenue, or like you are a budding business owner, entrepreneur, and you don't have that much of big budget to hire agency, or even you don't you cannot hire the people on your team. So by learning this platform, because you know that marketing is the core of any business, and the digital marketing is nowadays the new terminology for marketing. If there's a marketing, it must be the digital marketing nowadays. So you can learn the entire strategy, how to like create your own domain, your own website, how to design your own ad, and how to run your ad, how to get revenue or the lead generation. Everything will be taught in this program. So you can enable yourself to promote your business, to earn more revenue in the business. Again, if you are a social media or influencer or YouTuber, and like you are expert in creating content, but this is not the end. End of the day, you want to earn revenue, you want to grow your audience, you want to monetize your channel, and this can only be done when you are expert in that. So like with this program, will train you. If you are planning to increase your social media platform or the audience engagement, will train you how to grow that and how to uh, reach the monetization and increase your monetization. Now, even if you are not looking for a job or a business, and you are want to work like a freelancer, you are looking for a freelancing career, again, we'll train you on wider range of things, and we will train you how to gain projects, how to work with the clients, and how to hand over the projects or the complete the projects. And again, last but not least, the e-commerce business owners. This is very much important, useful for the e-commerce business owners. Not only the business owners, and as a career, if you're looking to enter in any business, e-commerce business houses, you can acquire knowledge, skills, how to like, it's not like the listing a product in an e-commerce platform. If I talk about, so for example, Amazon itself, Amazon is a wide platform and a similar like search engine like a Google. So Amazon itself is a platform, complete platform. So like there are thousands of sellers for the similar product. How you can come up in the front five or the top five, and how you can boost your sales in that. So we'll also train you on the e-commerce business, how to grow your e-commerce business. Yeah. So that's what about the course that you learn. Now, what is the advantage of digital age? Digital age is having a two mode of classes. The first is the physical classes that we are running at our centers, and there's one the online session and the live sessions in the e-learning mode, and this is accessible by anybody who is sitting across the globe. And so the first, our training sessions in the e-learning mode is completely live. There's no like recording sessions you will get the live session with the industry experts, and uh, you can ask questions. It will be a small batch. You can interact like normal classrooms in the physical classrooms. And I'd like to suggest you also that nowadays because we want to work in the digital world,
itself is a digital world, is online world. So learning in the online mode is always a beneficial. You save your time, you save your expenditure also. If you want to relocate somewhere or you want to travel to a center, it saves your time and money also. Now, all the sessions will be recorded also, and we have a 24/7 LMS. All these classes recordings will be uploaded on the LMS. So in case you miss any topic or don't understand any topic, you can refer your LMS, learning management system, and revise those recordings even 100 times, which is not possible in the physical classroom. In a physical classroom, the challenge is like, if you miss any topic or don't understand a particular topic, the trainer will just give you a brief of the problems. He or she, the trainer, cannot describe the entire session for you, because the trainer has more classes to conduct. Now, we have a real tools training. Like, we'll give you access to all the digital tools, all the tools which is in the digital marketing and the agencies, or for the digital marketing purposes, and you will learn everything on the real tools. As I also explained, our trainers are from the industry. They are not just the trainer; they are working on a various projects, so they will train you on the real insights, or they will let you know what the problem may come in your career or in your life, and how you can solve these problems. And obviously, the guaranteed placement support, we are always with our students who are looking for a job, and we will be supporting them until they get a job. There's no limitation of interview, or there's like not like that we don't support any time. Until they get a job in the industry, we will be supporting them. Right. Yeah. So thank you for this patience and listening to me. And for any, we are in the screen, on the screen, the numbers are written there. You can note down the number. I'll also ask my team to share the details in the chat box, and so that if you want to contact us, digitaledgeinstitute.com is our website, or you can write to us at info@digitaledgeinstitute.com. And our office is in Noida, Sector 62. It's in Delhi NCR. And if you want to come to our center, if you're looking for future classes. Thank you so much for your time. And now I'd like to hand over the session to Mr. Jitendra, who will take you ahead for the presentation of the digital marketing fundamentals and web development. Mr. Jitendra and Sachin will be taking ahead the session. So over to you, Mr. Jitendra. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Rajesh sir, for the introduction. Thank you so much. Yeah, you So are I'm most just welcome. Yeah. presenting my screen. Yeah. So, guys, my name is Jitendra Singh, and today I'll let you know about what is digital marketing, or you can say fundamental of digital marketing. Okay. So, what is digital marketing? So, digital marketing is the promotion of product services using digital channels such as website, social media, search engine, emails, and mobile apps. It involves various strategy like content marketing, social media marketing, email marketing, and search engine optimization to reach and engage potential customer online. Okay. So जैसे कि आप जानते हैं, डिजिटल मार्केटिंग काफी ट्रेंडिंग में है आज के टाइम में, 2024 की बात करें, और एक्चुअली बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं चीजों को। अगर एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग कोई शॉपिंग भी करते हैं या फिर हम कुछ भी सर्च करते हैं, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को कुछ सामान लेने जाना है बाहर, बट मैं एक बार जाने से पहले मैं उस चीज को ऑनलाइन जरूर रिसर्च करूंगा एक बार इंटरनेट पे। अगर एक नंबर्स की बात करें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि गूगल पे एवरी सेकेंड 99,000 से ज्यादा सर्चेस आते हैं एवरी सेकेंड। मिनट्स की बात करें तो 5.94 मिलियन सर्चेस आते हैं गूगल पे। क्यों? क्योंकि लोग आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब लोग निकलने से पहले ये चीज देख लेते हैं कि क्या पता मुझे ये चीज सस्ती मिल जाए। ठीक है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में क्यों जाना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग में क्यों स्विच करना चाहिए अपना करियर उसके अंदर। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक है या जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो ओवरऑल लोग हैं, वो हर चीज ऑनलाइन प्रेफर करते हैं आजकल। ठीक है। तो एक इसमें फनल जो मैंने आपको दिखाया है इसके अंदर, एक इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ इसको। ये फनल का क्या है, अभी जैसे इसमें आप देख रहे होंगे अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन और लॉयलिटी। एक एग्जांपल दिया है मैंने, एक फनल मैंने क्रिएट किया है फॉर दी शर्ट ओनली, कि अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आइदर वो आपका ऑफलाइन हो या ऑनलाइन बिजनेस हो आपका, सबसे पहले अगर हम अभी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसी के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर हमारा कोई ब्रांड है, वेबसाइट है हमारी, मुझे उसे बढ़ाना है आगे या मुझे उसे रेपुटेड बनाना है,
तो सबसे पहले हम उसकी अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस कैसे? थ्रू एड्स, सोशल मीडिया, वेबसाइट, ब्लॉगिंग के थ्रू, या और भी जो मीडियम है जो हम करेंगे, जो हम आपको सिखाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में, कि हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस करते हैं सो दैट लोग हमारे बारे में जाने। लोग डेफिनेटली जब हमारे बारे में लोग जानेंगे, ठीक है, लोग जानेंगे, उसके बाद हम अपना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं मार्केट में, चांसेस हैं कि लोग उसे कंसिडर करेंगे। मतलब अगर मैंने अपने ब्रांड के बारे में बताया दैट या वी आर XYZ ब्रांड, और उसके बाद फिर मैंने उसके ऐड चलाए हैं, ठीक है, मार्केट में, तो डेफिनेटली चांसेस है कि लोग उसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर लोग उसे कंसिडर करते हैं, सो हाई चांसेस है कि जिसने कंसिडर किया है तो चांसेस है कि कन्वर्जन होगा मेरा। एट द एंड किसी बिजनेस का मेन यही होता है कि हमारी सेल बढ़ जाए, सेल इंक्रीज हो जाए, और डेफिनेटली होगी अगर आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी होती है। सो डेफिनेटली है कि वो कन्वर्जन होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेरा लॉयल्टी। अब लॉयल्टी का क्या मतलब है इसके अंदर? सो लॉयल्टी मीन्स कि अगर मैंने अपनी कोई भी मार्केटिंग करी है और उससे कोई लीड कन्वर्ट हुई, मतलब अगर हमारे कस्टमर ने हमसे कुछ सामान लिया, तो हमें उस कस्टमर को अपने ब्रांड, अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उनको लॉयल बनाना है हमें, कि ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी हमसे आके सामान ले या हमसे आके परचेज करें हमसे ऑनलाइन। वो हम कैसे करेंगे? अगर हमने हमारी वेबसाइट से किसी ने कुछ परचेज किया तो हम डेफिनेटली टाइम टाइम उनसे रिव्यू लेंगे, हम उनसे फॉलोअप लेंगे, फीडबैक लेंगे कि हमारी सर्विस आपको कैसी लगी या हमारा सामान आपको कैसा लगा। अगर वो आप रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं या कुछ भी सर्विसेज, या फिर आप उन्हें ऑफर दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप हमसे शॉप करते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा। सो दीज आर सम ट्रिक्स जिसके थ्रू आप कस्टमर से लॉयल्टी बिल्ड कर सकते हो अपनी आप, ताकि वो आपसे सेकंड टाइम आपसे आए और आपसे सामान ले, मतलब लॉयल कस्टमर बने आपका, ठीक है। सो डिजिटल मार्केटिंग था ये। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कि क्यों हमें और किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट इसके अंदर जो मेंशन है वो है रिड्यूस कॉस्ट। Method like social media advertising or email campaign are often cheaper compared to traditional marketing method like TV commercial or print ad like banner hoarding. So सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम, आपने देखा होगा बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, पेप्सी है या कोई भी कोका कोला है, या आपने देखे होंगे इनके बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स होती हैं। बड़े-बड़े ब्रांड जो भी होते हैं ये अपनी मोस्टली ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने का प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि थोड़ा बड़ा ब्रांड है, थोड़ा बड़ा रेपुटेड ब्रांड होता है। बट अगर मैं सजेस्ट करूं तो डेफिनेटली किसी भी ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए हम डिजिटल मार्केटिंग इजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। उससे बेनिफिट क्या होगा हमें? सबसे पहली चीज ये होगी इसके अंदर कि हम अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को मतलब टारगेट कर पाएंगे, जिनको हम अपना सामान बेचना चाहते हैं या जिनको हम दिखाना चाहते हैं, और सही जगह जगह पे और सही लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा इंटरनेट मार्केटिंग होती है या ऑनलाइन मार्केटिंग कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है सही जगह और सही समय पे पहुंचाना अपने इस कस्टमर को कुछ भी चीज, या सही जगह है सही समय तक पहुंचना अपने ब्रांड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल रीच। विद डिजिटल मार्केटिंग यू कैन रीच पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जैसा कि आप जानते हैं इंटरनेट है हमारे पास, तो डेफिनेटली हमें फिजिकल लोगों से मिलने की ऐसी नीड नहीं पड़ेगी अगर हमें मार्केटिंग करनी है। तो कि भाई एक होता है कि पहले जब नहीं था डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड उतना नहीं था, अगर हम आज से कुछ 5-6 साल पहले की बात कर लें हम, तो लोग ऑफलाइन मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ ज्यादा फोकस थे। टीवी कमर्शियल्स होते थे या होर्डिंग्स लगती थी आपकी, या कोई बंदा खड़ा कर दिया किसी चौक पे, वो आपको पैम्पलेटिंग कर रहा है वो आपके लिए, ठीक है। तो उसमें क्या था कि उसमें हम एक लिमिटेड एरिया ही कवर कर सकते थे। मतलब हम लोग अगर सपोज वी आर पुटिंग इन नोएडा, तो हम गुड़गांव तक नहीं पहुंच सकते उसके अंदर, या हम कहीं और तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, आप एक ही लोकेशन से, बिकॉज आपके पास ऑप्शन दिए हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में, आपको मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास कि आप जिसको चाहो उसको टारगेट कर सकते हो, जिस लोकेशन में चाहो उस लोकेशन को भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों चूज करनी चाहिए, ये बहुत इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? देखिए, हमें ये पता है कि कस्टमर सबसे ज्यादा किस जगह पे मतलब हमें मिलेंगे, कि हमें कस्टमर से ज्यादा हम कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं हम कस्टमर सबसे ज्यादा, ठीक है। तो वो कौन सी जगह है? वो है इंटरनेट। अब डेफिनेटली अगर हमें पता है कि हमारे कस्टमर इंटरनेट पे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी मार्केटिंग इंटरनेट पे ही करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको नंबर्स का बताया था कि 99,000 सर्चेस आ रहे हैं आपके गूगल पे, ठीक है। तो आप इसमें ये भी अब आप चीज देख सकते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए चूज करनी चाहिए और हमें अपना करियर इसमें इसलिए
मतलब हमें सोचना चाहिए करियर के लिए, क्योंकि जो बिजनेसेस हैं वो स्मॉल बिजनेस हो या आपके बड़े बिजनेस हो, हर इंसान को रिक्वायरमेंट होती है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का एक बंदा हायर करे और उनसे अपनी मार्केटिंग कराए। या फिर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने खुद के बिजनेस को भी एक बड़े लेवल तक लेके जा सकते हो अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हो या उनको जानते हो आप उन चीजों को। ठीक है, देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, ये कोई ई कॉमर्स या हेल्थ केयर की बात नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, आइदर वो आपकी फूड इंडस्ट्री हो, मेडिकल इंडस्ट्री हो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, या आपकी XYZ कोई भी, मतलब छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, बिना डिजिटल मार्केटिंग के आप किसी भी ब्रांड को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, मतलब या उसको आप उसकी रीच आप बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो, आज के टाइम की बात करूं तो हर एक कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग का कोई ना कोई बंदा होता ही है। अब वो बेशक एजेंसी को हायर करें या वो इंटरनली कोई बंदा हायर करें, इसीलिए डिमांड में है ये डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन या इतनी ज्यादा हमारी ऑडियंस है इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं हम लोग रियल टाइम रिजल्ट के बारे में। गिव्स यू इंस्टेंट फीडबैक ऑन हाउ योर कैंपेन आर परफॉर्मिंग। देखिए अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का, कि आपने अपनी कोई ब्रांडिंग करी, वो होर्डिंग लगवाया आपने किसी हाईवे पे लगवाया आपने, या फिर आपने एक बंदा खड़ा कर दिया कि आपका सपोज एक इंस्टीट्यूट है या फिर आपका कोई रेस्टोरेंट है आपके नियर बाय या फिर आपका कोई हॉस्पिटल है, आपने एक बंदा खड़ा कर दिया कि आपको यहाँ पे फ्लायर्स टेम्पलेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। सो आप देखिए, उसने उसका मेन एक फोकस होगा उसका कि उसको हर बंदे को फ्लायर्स वगैरह बांटने हैं और वो दे के चला जाएगा। अब उसके बाद ना तो हमें ये पता है कि कितने लोगों ने उसको पढ़ा, कितने लोगों ने उसे देखा, और ना उस बंदे को ये पता था कि जिसको उसने फ्लायर दिए हैं क्या उसे इस चीज की नीड थी या नहीं थी। ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में हम अपना प्रमोशन या हम अपनी मार्केटिंग जिस इंसान को कर रहे हैं, हम उसे पहले ही सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को, कि मुझे अपना जो एड है या मुझे अपनी जो ब्रांडिंग है, मार्केटिंग जिसको भी दिखानी है, ये किस एज ग्रुप को दिखानी है, किस इंटरेस्ट वाले बंदे को दिखानी है, किस। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले तो आपका पैसा बचेगा। क्यों? भाई एक बंदा खड़ा कर दिया आपने जिसने 100 लोगों का टाइम रेटिंग करी, बट पता चला कि 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोगों को ही रिक्वायरमेंट थी, बाकी 95 को नहीं थी। सो वेस्ट ऑफ मनी। लेकिन यहाँ पे आप अगर 100 लोगों को टारगेट करोगे तो आपको पता होगा ये 100 लोग वो हैं जिनको मेरे सामान की जरूरत है। ठीक है, और यही चीज आपको पता भी चल जाएगी आपकी, आप बैठे बैठे अपने एनालिटिक्स चेक कर सकते हो बैठे बैठे अपने सिस्टम में, कि हाँ मेरे कितने लोगों ने मेरा एड देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोग मेरी वेबसाइट पे आए। आपको रियल टाइम रिजल्ट मिलेगा एवरी सेकंड्स एवरी मिनट का। ठीक है, सो रियल टाइम रिजल्ट मैंने इसलिए इसमें डिस्कस करा आपके साथ ये। नेक्स्ट आता है मेरा लीड जनरेशन। बाय क्रिएटिव अट्रैक्टिव कंटेंट यू कैन कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। तो कंटेंट से मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाहूंगा। देखिए मार्केटिंग कंटेंट की अगर बात करें तो दो तीन तरह से हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला होता है हमारा ब्लॉगिंग करना। आपने सुना होगा ब्लॉगिंग, कि हम एक वेबसाइट पे अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं। ठीक है, अब ब्लॉगिंग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली, जहाँ पे हम किसी कंपनी की सर्विस के बारे में पढ़ सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या उस कंपनी के अबाउट अस के बारे में, कि मतलब कौन कौन उस कंपनी में हेड है, कब ये एस्टैब्लिश हुई थी, कब। ठीक है, तो आप एक ब्लॉगिंग करके भी एक मार्केटिंग कर सकते हैं किसी कंपनी की। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग में हम बेसिकली किसी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उनकी डील्स के बारे में प्रमोट करके, उनके ऑफर्स के बारे में प्रमोट करके, या कुछ ऐसा अट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएट करके लोगों का इंटरेस्ट अपनी ओर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज होती है, आपने सुना होगा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए आप ब्लॉगिंग करेंगे, कंटेंट मार्केटिंग करेंगे, बट इसको ऊपर ले जाने के लिए आपको एसईओ की बहुत नीड पड़ेगी, क्योंकि बिना इसके तो आप उसको ट्रेंडिंग में ला नहीं पाएंगे कि आपको रैंक कराना है आपको। अब ये एसईओ की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे हम उसको ऊपर लेके आएंगे, डेफिनेटली आपको सीखने को मिलेगा कोर्स के अंदर। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, बेसिक टू एडवांस, कि आप कैसे किसी ब्रांड का एसईओ करके ऑर्गेनिक उसको टॉप पे रैंक करा सकते हैं और उस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अब वो बेशक आपका बिजनेस हो या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस होगा आप उसे रैंक करा सकते हैं या फिर उसकी बिजनेस की सेल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये था लीड जनरेशन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइम सेविंग।
जैसे कि आपको अभी समझ में आया होगा इसका कि हम डेफिनेटली जब हमें कहीं ज्यादा इधर उधर जाना नहीं पड़ रहा है हमें, और हमें रियल टाइम रिजल्ट मिल रहा है, तो डेफिनेटली काफी सारे टास्क हम कर पा रहे हैं और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर। तो डेफिनेटली इसलिए हमारी टाइम सेविंग होती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे। इसके अलावा और भी आपको नॉलेज मिलेगी जब आप कोर्स अगर आप करते हैं, तो आपको और एडवांस नॉलेज मिलेगी कि और क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या हम डिजिटल मार्केटिंग करके अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं या किसी बिजनेस को हम बूस्ट करा सकते हैं। अब वो बेशक आप जॉब करें, फ्रीलांसिंग करें या फिर अपना कोई बिजनेस करें, आप तीनों चीज में कैसे बूस्ट कर सकते हैं चीजों को, तीनों को। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिजिटल मार्केटिंग वर्क। डिजिटल मार्केटिंग काम कैसे करती है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है केवाईसी। आपने वर्ड सुना होगा पहले बैंक वगैरह में। इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स रिसर्चिंग एंड आइडेंटिफाइंग द डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस टू टेलर योर मार्केटिंग एफर्ट। देखिए, नो योर कस्टमर में क्या होता है, अब क्योंकि अभी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है, मैंने आपको ट्रेडिशनल तो मैंने बता दिया था आपको कि अगर आपने कोई होर्डिंग लगा दिया हाईवे पे, किसी बहुत फेमस हाईवे पे आपने होर्डिंग लगा दिया, वहां से करोड़ों गाड़ियां गुजर रही हैं, लोग देख रहे हैं आपकी होर्डिंग को, बट ना आपको ये पता है कि जो लोग देख रहे हैं क्या उन्हें चाहिए भी या नहीं चाहिए। डेफिनेटली देख रहे हैं, आपने उसके लिए 10-15 लाख रुपए खर्च किया आपने किसी मेन हाईवे पे लगवाने के लिए वो चीज। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम लोग टारगेट नहीं कर सकते हैं लोग, हमें ये भी नहीं पता है कि कौन हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था, क्या इसको चाहिए भी था वो सामान जो हम दिखा रहे हैं इनको। ठीक है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम उसी ऑडियंस को फिल्टर कर दें जिसको हमारा सामान चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग में वही ऑप्शन आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं कि हम लोग डेमोग्राफिक वाइज, मतलब कि मुझे चाहिए कि मेरे को एक कस्टमर चाहिए। सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट है कि मैं लैपटॉप बैग्स का, मेरा एक कंपनी है या मेरी वेबसाइट पे लैपटॉप बैग में ऑनलाइन सेल करता हूँ। सो मैं टारगेट कर सकता हूँ ऑफिस एम्प्लॉयज को, एज ग्रुप के वाइज, इंटरेस्ट वाइज कि किसको किस तरह का बैग चाहिए एग्जैक्टली, और उसके बाद में अपना एड शूट कर सकता हूँ जिससे कि एकदम एग्जैक्ट ऑडियंस को मेरा एड दिखेगा जब भी वो कुछ सर्च करते हैं लैपटॉप के रिगार्डिंग, लैपटॉप बैग के रिगार्डिंग। ठीक है। तो इसमें ये था। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है चूजिंग द राइट चैनल। अब देखिए, चैनल से इसमें मेरा जो मतलब है कहने का, वो है मेरा सोशल मीडिया को मैं स्पेशली इसमें टारगेट करना चाह रहा हूँ बेसिकली, कि सोशल मीडिया हो या फिर आपका गूगल का सर्च इंजन हो। मैं जैसे कि बता चुका हूँ नंबर्स के बारे में आपको कि गूगल के सर्च इंजन पे कितना बड़ा नंबर है जो पर सेकंड आता है। तो इससे बढ़िया तो प्लेटफॉर्म कुछ मिल ही नहीं सकता है अपने ब्रांड को बूस्ट करने के लिए। अब देखिए, चूजिंग द राइट चैनल मैंने इसमें क्यों डिस्कस करने करा है मैंने इसके अंदर। देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग करेंगे या सीख लेंगे जब आप, तो आपको नॉलेज मिलेगी कि फेसबुक पे एक्चुअली ऑडियंस कितनी है, किस एज ग्रुप की है, इंस्टाग्राम पे किसकी है, किस एज ग्रुप की है। मैं एक छोटा सा नंबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक पे जो टोटल यूजर है, मंथली यूजर एक्टिव जो रहते हैं, वो है 2.9 बिलियन। इट्स अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। इंस्टा पे है 2 बिलियन एक्टिव यूजर हैं। स्नैपचैट की बात करें तो 750 मिलियन इस पे एक्टिव यूजर्स हैं। लिंक्डइन पे ओवर 1 बिलियन यूजर हैं एक्टिव। ट्विटर पे भी काफी, मतलब अगर आप बात करें तो 335.7 मिलियन यूजर हैं आपके। ठीक है। अगर आप इसके अंदर और डीप में जाएंगे तो आपको ये डेटा भी मिल जाएगा कि कितने उसमें एज वाइज की इतने 40 वाले बंदे हैं, इतने 30 वाले बंदे हैं। बट अगर एक रिसर्च की बात करें तो आपको मोस्टली 40 प्लस के जो लोग हैं वो आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे ज्यादा मिलेंगे, और आपको जो यंग जनरेशन है वो आपको इंस्टा, स्नैपचैट, लिंक्डइन पे आपको ज्यादा मिलेगी। तो अगर मैं, देखिए, आपके साथ छोटा सा नंबर एक और शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ फेसबुक का। अगर फेसबुक की रिसर्च की बात करें तो फेसबुक पे मैंने जैसा बताया आपको 2.9 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं हमारे पास फेसबुक पे। अगर इसमें मैं थोड़ा ब्रेकअप बताऊं आपको तो इसमें 18 टू 24 की एज ग्रुप जो है, 18 से 24 साल के जो लोग हैं वो हैं 23%। 25 टू 34 एज के जो लोग हैं वो हैं 31%। 35 से 44 की एज ग्रुप के लोग हैं इसमें 21%। एंड 45 से 54 के हैं 12%। 55 से 64 के हैं 7.6, और उसके बाद आपके थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, 65 के बाद 6%, 5 ऐसे चला जाता है आपका ये। ठीक है। सेम गोज विद इंस्टा ऑल्सो। अगर मैं इंस्टा की भी रिसर्च की बात करूं तो इसमें 18 टू 24 में, लेकिन इसमें मैं थोड़ा और ब्रीफ डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ में। इसमें मैं आपको जेंडर वाइज बताना चाहूंगा कि इंस्टा पे क्या है,
18 to 24 के जो एज ग्रुप है उसमें मेल जेंडर जो है वो 15% एक्टिव है और फीमेल है 16.5%। 25 से 34 में 14.2% है और फीमेल है 16.4%। उसके बाद आ जाते हैं 35 से 44, तो 35 से 44 के लोग हैं 8.1% और मेल हैं और फीमेल है 7.9%। तो जैसे जैसे ये एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नंबर्स काफी कम हो जाएंगे। तो क्लियर सा रिजल्ट है कि जब आपको ये पता होगा कि किस प्लेटफॉर्म पे मुझे ज्यादा ऑडियंस मिलने वाली है मेरी किस एज ग्रुप की। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो 40 प्लस के लोगों के लिए सुटेबल है, कि आप कोई नेक सपोर्ट या कुछ ऐसा बेच रहे हैं, आप अपने वेबसाइट पे आप सेल आउट कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली टारगेट करेंगे फेसबुक को, यूट्यूब को आप, क्योंकि आपको अपनी एज ग्रुप की ऑडियंस वही मिलने वाली है। और ये आपको ऑप्शन सिर्फ मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो आपको पता ही नहीं है कि आप जिनको दिखा रहे हैं क्या वो उनको नीड भी है नहीं है। ठीक है, तो चूजिंग द राइट चैनल के बाद अब आगे बढ़ते हैं अपने क्रिएटिंग एंड पोस्टिंग द कंटेंट। एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कंटेंट के बारे में, तो डेवलप एंगेजिंग एंड रिलेवेंट कंटेंट दैट रीजन विद योर ऑडियंस, that resonate with your audience and posting on your website, social media and sending emails। जैसा कि मैंने आपको बताया कंटेंट बहुत जरूरी है। विदाउट कंटेंट हम इंटरेस्ट गेन नहीं कर सकते लोगों का, हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कुछ दिखाएंगे नहीं। जब तक हम ऑफर, जब तक हम डील्स के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं उस चीज के लिए। सो कंटेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मेरा engaging with audience। Interact with your audience by responding to comments, answering question and encouraging discussion। Engaging with your audience बहुत important फैक्टर है। अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपका कोई, आप कहीं पे जॉब करते हैं, सो कंपनीज में डेफिनेटली ध्यान रखा जाता है इन चीजों का कि हमारी ऑडियंस का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को लेके। कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया, अब ऐसा करना तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि प्रोडक्ट सेल किया और हमने कहा कि ठीक है अब सेल हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है कस्टमर से। ऐसा नहीं होता है। कस्टमर का फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लॉयल्टी बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर अगर कस्टमर एंड की बात करें तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सामने से फीडबैक देना ज्यादा प्रेफर करते हैं कि उन्होंने कुछ सर्विस यूज करी। अगर किसी कस्टमर ने कोई फीडबैक दिया है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसका रिवर्ट बैक करें कस्टमर का, कि अगर वो बोल रहे हैं दैट आई लाइक योर सर्विसेज, सो यू नीड टू रिराइट इट कि थैंक्स फॉर योर अप्रिशिएशन, या कुछ भी ऐसा करके रिराइट करें ताकि कस्टमर को लगे कि हाँ काफी अच्छी सर्विसेज है, कि एंगेजमेंट की काफी अच्छी है, कस्टमर की सुनते हैं, कस्टमर से डिस्कशन करते हैं। और एक्चुअली कंपनीज में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। ठीक है, कंपनीज में फीडबैक को लेके काफी सीरियस होते हैं कंपनीज, एनपीएस बोलते हैं उसे। ठीक है, वो आपको सीखने को मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग में, जिसमें आपका एक टॉपिक आएगा ओआरएम का, वो डेफिनेटली आपको डिस्कस करेंगे अपने साथ के साथ हम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग द रिजल्ट। अब देखिए इतनी अगर हम मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम अपने सोचो अपने ब्रांड को हम बढ़ाने के लिए हमने इतनी मार्केटिंग करी है, हमने एंगेजमेंट बढ़ाई है, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो चेक करना बनता है। सो विदाउट एनालाइजिंग हम कैसे पता चल पाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है या हमारी वीकनेस क्या है। आपने ऐड चलाया, मार्केट में आपका ऐड चला, लोगों ने देखा, लोग सेल बढ़ रही है आपकी, सेल कम हो रही है, आपको डेफिनेटली रिजल्ट देखना पड़ेगा। तो चीजों को एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, यूज एनालिटिक्स टूल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट, ट्रैक मैट्रिक्स लाइक वेबसाइट ट्रैफिक, सोशल मीडिया एंगेजमेंट, email open rates and conversion rate to understand what's working and what's need improvement। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनालाइजिंग करके ही आपको पता चलेगा कि जो आपका कैंपेन या जो भी आपका मार्केटिंग चल रही है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसको कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उसमें क्या करना चाहिए हमें। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग, मेन सर्च इंजन। सो यहाँ मैंने कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा आपसे, कि जो सबसे ज्यादा जो मेरा शेयर है वो है गूगल का, गूगल के सर्च इंजन का। 85.28% यूजर इज अवेलेबल ऑन गूगल। नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया था कि कितने सर्चेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली लोग गूगल एड्स भी प्रेफर करते हैं, मोस्टली के काफी लोग गूगल एड्स प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट आता है मेरा याहू। याहू में जो शेयर है, मार्केट शेयर, वो है 6.58%। देन बिंग है 6.39, एओएल है, ये कंट्री वाइज आ जाता है, जो सिर्फ अमेरिका में यूज होता है, 0.46। नेक्स्ट है मेरा डकडगो, आपका नेक्स्ट है डकडगो एक्चुअली। उसके बाद अदर्स भी सर्च इंजन है जो कि 0.4% है।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। इसके बाद आपको मिस्टर सचिन बताएंगे वेबसाइट के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे, और आपको डेफिनेटली कुछ नॉलेज मिलेगी अगले वाले मतलब नेक्स्ट आपको जो बताएंगे सचिन सर उनसे। सो ओवर टू यू सचिन सर। Yeah, thank you, Jitendra. Thank you for your insights. And now I'd like to invite Mr. Sachin. Please take the session ahead. And there will be a lot of practical sessions in this session also. Please remain with us. Yeah. Sachin, it's over to you. Yes, You can yes. take Hi, yeah. Hi everyone. My name is Sachin Chauhan and हम आज डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट क्या होती है एंड वेबसाइट कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन होस्टिंग क्या होता है हमारा। ठीक है, तो अभी राजेश जितेंद्र जी ने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या बेनिफिट्स है इसके। एंड डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपके पास सबसे पहले एक वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। तो अगर हमें एक वेबसाइट क्रिएट करना है आपको अपने बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज अ डोमेन नेम। आपको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक डोमेन नेम चाहिए। तो डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम इज द एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस अ वेबसाइट। डोमेन नेम क्या है? आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है या फिर आपकी वेबसाइट के बिजनेस का नेम होता है। तो मुझे अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप नेम सोचेंगे कि मुझे एबीसी या कुछ XYZ एक नेम रखेंगे आप अपने बिजनेस का। तो अगर इंटरनेट के ऊपर आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस क्या होगा? हमारी वेबसाइट है, शॉप क्या है। आप ऑफलाइन जैसे अगर कुछ काम स्टार्ट करते हैं तो आप एक नेम सोचते हैं बिजनेस की, कंपनी है मेरी एबीसी, एक नाम होगा उसका, XYZ एक नेम होगा। तो जैसे ही हमारा डोमेन है, डोमेन एक बिजनेस का नेम होता है, जैसे flipkart.com, amazon.com। ठीक है, तो हमें जो अपना डोमेन नेम रखना है वो किस टाइप का डोमेन नेम होना चाहिए? तो सबसे पहले आते हैं डोमेन नेम। रेलेवेंसी हो, आप जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आपका डोमेन क्या रेलेवेंट हो आपके बिजनेस से। तो ऐसा नहीं है मैं ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस एक स्टार्ट कर रहा हूँ एंड मैंने डोमेन नेम कुछ अलग रखा हुआ है, तो वो रेलेवेंट ही नहीं है आपके बिजनेस से। तो उससे क्या होगा? अगर रेलेवेंट नहीं होगा तो आपकी एसईओ में, आपकी गूगल पर रैंकिंग में भी इफेक्ट पड़ेगा। इससे आपकी रैंकिंग गिरना स्टार्ट हो जाएगी या फिर रैंकिंग आप अप नहीं कर पाएंगे गूगल के ऊपर। तो रेलेवेंसी होना जरूरी है कि यूजर को पता लगे नेम से कि आप जो आपका डोमेन है वो आपको बता रहे यूजर्स को कि हाँ आपका बिजनेस ये है, ऑनलाइन शॉपिंग का है या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का है या कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं। तो रेलेवेंसी होना जरूरी है आपके डोमेन नेम में। ओके, उसके बाद आता है मेमोरेबल। देखिए यूजर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। आपने कभी देखा होगा, या आपकी एक ऑफलाइन शॉप भी है तो आपके पास जो यूजर्स आता है तो वन टाइम विजिट कर रहा है, उसके बाद बार बार भी विजिट करता है अगर आप कुछ अच्छा प्रोवाइड करते हैं उसको। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट पे एक न्यू विजिटर्स होता है, एक रिटर्निंग विजिटर्स होता है। तो फर्स्ट टाइम किसी ने विजिट किया आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी शॉपिंग की वेबसाइट है, फर्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अगर उसके डोमेन अच्छा लगा एंड आपकी वेबसाइट की सर्विसेज अच्छी लगी तो वो क्या करेगा? बार बार ही विजिट करेगा। लेकिन आपने जो डोमेन नेम है बहुत ज्यादा लेंथी रख दिया है, बहुत ज्यादा उसके नाम अंदर सिनोनिम्स वगैरह है, कुछ इस टाइप से नेम रखा जो यूजर्स को याद ही नहीं रहा, तो वो बाद में विजिट ही नहीं कर पाएगा, उसको याद ही नहीं रहेगा आपका डोमेन भी कुछ कुछ था। तो यहाँ पर जो डोमेन नेम है वो एक ऐसा हो जो लोगों को याद रहे। जैसे एग्जांपल फ्लिपकार्ट है तो लोगों को याद रहता है फ्लिपकार्ट है डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होना चाहिए, बिजनेस नेम जो होना चाहिए वो 10 कैरेक्टर्स, बहुत ज्यादा 15 कैरेक्टर्स, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका डोमेन नेम। अगर इससे ज्यादा आप रखते हैं तो लोगों को याद ही नहीं रहता डोमेन नेम आपका। ठीक है, एंड उसके बाद है सिंप्लिसिटी। आपका जो डोमेन हो वो सिंपल हो, आपको कोई ऐसा टफ नेम नहीं रखना जो प्रोनाउंस में प्रॉब्लम हो उसको यूजर को। एंड कोई हाइफन या नंबर्स का यूज नहीं करना है डोमेन नेम में आपने। जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए फ्लिपकार्ट डोमेन नेम है तो मैंने क्या किया, अगर मैं डोमेन नेम परचेज कर रहा हूँ flipkart.com, अब मैं ये नेम सर्च कर रहा हूँ, मुझे ये नेम परचेज करना है, बाय करना है किसी भी वेबसाइट से, तो मुझे डोमेन नेम नहीं मिल रहा। अब लोग क्या करते हैं कि डोमेन नेम अगर ये सेम उनके नाम से नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं? हाइफन यूज करते हैं डोमेन नेम में, फिलिप एंड हाइफन कार्ट। अब ये आपको यूज नहीं करना है। कभी आपने देखो जितने बिजनेस है, जितने ब्रांड्स है, वो हाइफन वगैरह यूज नहीं करते, नंबर्स यूज नहीं करते। तो आपको डोमेन नेम में क्या करना है? नंबर्स हाइफन का यूज नहीं करना है। तो आपको सिंपल रखना है, वर्ड ऑफ सिनोनिम्स है इसका यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, और हाइफन और नंबर्स का यूज नहीं करना है अपने डोमेन नेम में आपको। ओके, नेक्स्ट आता है आपका सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के बाद आता है हमारा एक्सटेंशंस। देखिए डोमेन जब आप परचेज करते हैं, बाय करते हैं कोई भी डोमेन, तो उसके बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, डोमेन नेम एक्सटेंशंस हम बोलते हैं। अब एक्सटेंशंस क्या होते हैं? जैसे लाइक आपने देखा हो .com, .in, .org, .gov। ठीक है, ऐसे .online, .xyz, बहुत सारे एक्सटेंशंस अवेलेबल है। अब ये एक्सटेंशंस आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग भी रहते हैं और आपकी कुछ कंट्री वाइज भी होते हैं। जैसे CCTLT डोमेन नेम होता है आपका, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन नेम।
तो आपको बताता है कि आपका जो डोमेन है वो किस कंट्री का है। जैसे .in वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो डोमेन नेम है वो इंडिया के लिए है। .jp .pk ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन है। .com एक कॉमर्शियल डोमेन नेम है जो कि आप किसी बिजनेस के लिए भी एंड किसी भी कंट्री के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो .com आप एक्सटेंशन के साथ जा सकते हैं। तो इतने टाइप्स के हमारे जब हम डोमेन परचेज करते हैं तो हमें पता हो कि हमें तो कौन सा डोमेन परचेज करना है और क्या नेम रखना है। देखिए बिजनेस नेम एक ऐसा होता है कि जो कभी भी आप चेंज नहीं करते उसको, तो इसमें टाइम लगता है हमेशा। आप अगर कोई भी डोमेन नेम परचेज कर रहे हैं तो आपको पहले सर्च करना है कि डोमेन नेम क्या होगा, अवेलेबल है नहीं है, ठीक है, और अट्रैक्टिव हो डोमेन नेम। एंड आपको एक्सटेंशन अगर आपको .com ही लेना चाहिए वैसे डोमेन नेम में नहीं मिल रहा है तो फिर अदर पे जा सकते हैं या फिर डोमेन नेम आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वेब होस्टिंग। देखिए डोमेन क्या है, आपका बिजनेस का नेम था अभी, तो डोमेन तो आपने परचेज कर लिया। मैं अभी दिखाऊंगा अभी हम कैसे परचेज कर सकते हैं, उसकी कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां से हम परचेज कर सकते हैं डोमेन नेम अपने लिए। तो डोमेन नेम आपने परचेज किया कि नाम मेरा abc.com होगा मेरे बिजनेस का। अब आता है कि बिजनेस के लिए देखिए आपके पास स्पेस भी होना जरूरी है। अगर आप ऑफलाइन बिजनेस की मैं बात कर रहा था कि ऑफलाइन अगर आप शॉप भी ओपन करते हैं तो शॉप का नेम तो आपने ठीक है सोच लिया कि मेरा शॉप का नाम ABC होगा, XYZ होगा, लेकिन शॉप भी तो चाहिए ना आपके लिए, स्पेस भी चाहिए। तो देखिए एक सर्वर होता है, आपने देखा होगा गूगल का भी अपना सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, बहुत सारे सर्वर है जहाँ पर डेटा स्टोर होता है। वैसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं जैसे GoDaddy, ब्लू होस्ट, हॉस्टगेटर, ये कुछ कंपनीज हैं, इनके पास भी अपने एक सर्वर है और इस सर्वर में से एक छोटा सा स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहां पर हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट का जो डेटा है हम उसको स्टोर करते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, डोमेन के साथ साथ हमें एक स्पेस भी लेना होता है ऑनलाइन सर्वर के ऊपर। वो 10 GB 20 GB वो जीबी के अकॉर्डिंग होता है और डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट का जो डेटा है वो कितना है। तो हम एक सर्वर में स्पेस परचेज करते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। अब कहाँ से परचेज करते हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे GoDaddy, आप लोगों ने सुना होगा नाम, GoDaddy सबसे ज्यादा फेमस है। ब्लू होस्ट है, ब्लू होस्ट से भी हम डोमेन भी परचेज कर सकते हैं और होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका हॉस्टगेटर है, होस्टिंगर है, जहां से हम डोमेन एंड होस्टिंग सर्वर और बिजनेस नेम दोनों हम यहाँ से खरीद सकते हैं। अब कैसे खरीदेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको GoDaddy या ब्लू होस्ट या बिगरॉक किसी एक वेबसाइट पे आता हूँ। बिगरॉक भी है, काफी फेमस है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पर सर्च किया bigrok.in या godaddy.in। बिगरॉक भी काफी अच्छी कंपनी है जहाँ से हम डोमेन एंड होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए डोमेन है जैसे .com डोमेन है, उसका प्राइस भी मेंशन है कि .com डोमेन आपको 49 का मिलेगा, अलग अलग प्राइस में आपको परचेज करना होता है डोमेन। तो .online का अलग प्राइस है। तो मुझे एक डोमेन परचेज करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, डोमेन नेम आपने जो सोचा है उसका नेम यहाँ पर सर्च करेंगे कि वो अवेलेबल है या नहीं है। देखिए कोई भी डोमेन जब आपके माइंड में आता है तो आप ये देखते हैं ऑलरेडी किसी ने परचेज तो नहीं किया उसको। तो आप यहाँ पर फाइंड योर परफेक्ट डोमेन पे आप टाइप करेंगे, जैसे लाइक मुझे एक बॉलीवुड का डोमेन परचेज करना है तो मैंने टाइप किया bollywood.com लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बॉलीवुड टाइप करिए, सर्च। ओके, देखिए अब मुझे यहाँ पर शो कर रहा है कि bollywood.com डोमेन अवेलेबल नहीं है, तो ये डोमेन आपको नहीं मिलेगा। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पर सजेशन भी देते हैं ये सारी कंपनीज आपको कि आप ये डोमेन भी परचेज कर सकते हैं। कुछ प्रीमियम डोमेन है जो ऑलरेडी किसी ने परचेज किया हुआ है, तो ये डोमेन भी मैं ले सकता हूँ। bollywood.online.com मुझे नहीं मिलेगा, तो यहाँ से GoDaddy, बिगरॉक या फिर हॉस्टगेटर, ब्लू होस्ट, यहाँ से हम अपने बिजनेस का नेम यहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1 ईयर के लिए लेना है, 2 ईयर्स के लिए लेना है, यहाँ पर आपको ईयर्स के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ता है। एंड मिनिमम जो डोमेन आपका जाता है वो 1 ईयर के लिए जाता है। ओके, एंड जब डोमेन आपका कंप्लीट हो जाता है आपके पास, इसके ऊपर आपको अकाउंट भी क्रिएट करना होगा, साइन अप करना होगा। उसके बाद आप डोमेन सेलेक्ट करिए, ऐड टू कार्ट करिए एंड पेमेंट कर दीजिए। डोमेन नेम आपके नेम पर, आपकी ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका फिर होस्टिंग। होस्टिंग भी आपको लेना होगा, सर्वर पे स्पेस लेना होगा, डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट का किस टाइप की वेबसाइट है। अगर आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो हो सकता है आपको अनलिमिटेड वाला प्लान लेना हो क्योंकि उसमें डेटा बहुत ज्यादा होता है। एक नॉर्मल बिजनेस वेबसाइट है आपकी तो फिर आप नॉर्मल एक होस्टिंग परचेज बेसिक प्लान भी आप ले सकते हैं। होस्टिंग देखिए अलग अलग टाइप्स की होस्टिंग होती है, जैसे लिनक्स होस्टिंग होती है, विंडोज होस्टिंग होती है आपकी। ये डिपेंड करती है आप किस प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो होस्टिंग लोग बाय करते हैं वो आपकी लिनक्स होस्टिंग जाती है। जैसे आप होस्टिंग पे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है वेब होस्टिंग, और होस्टिंग में एक ऑप्शन आ रहा है आपका लिनक्स होस्टिंग या विंडोज होस्टिंग। अब यहाँ पर दे रहा है कि देखिए ये होस्टिंग किस लैंग्वेज को या किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करेगी, कौन कौन सी हम वेबसाइट इस पर रन कर सकते हैं।
तो इस पे हम यहाँ पर देखिए सी पैनल मिलता है, आपको पीएचपी है, वर्डप्रेस है, नॉर्मल एचटीएमएल वेबसाइट है, और भी अदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हम लिनक्स के ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। विंडोज पे आ जाते हैं तो विंडोज जैसे डॉटनेट है, आईएएस सर्वर यूज होता है, डॉटनेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप उसके लिए विंडोज पे आप जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो होस्टिंग परचेज की जाती है वो लिनक्स होस्टिंग की जाती है, क्योंकि लिनक्स पे ही सबसे ज्यादा वेबसाइट बनती है, या वर्डप्रेस पे या फिर एचटीएमएल पीएचपी इन सब पे सबसे ज्यादा वेबसाइट लोग। होस्टिंग में भी देखिए यहाँ पर प्लान्स आते हैं बहुत सारे, और होस्टिंग में देखिए सर्वर भी होता है कि इंडिया का सर्वर यहाँ पर दे रहा है चूज करने के लिए, या फिर यूएस का सर्वर करना है। सर्वर तो इंडिया के अंदर होगा, यूएस के अंदर होगा। तो हम लोग ऐसा माना जाता है कि जैसे आप इंडिया में वेबसाइट को रन करना चाहते हैं, इंडिया का ट्रैफिक आएगा आपकी वेबसाइट को, आप इंडिया के सर्वर पे भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका लोडिंग टाइम थोड़ा फास्ट होगा। एंड सर्वर अगर यूएस का है तो हो सकता है थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम आपका ज्यादा है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा फर्क डिफरेंस नहीं होता दोनों में। आप यूएस और इंडिया पे जा सकते हो, और प्राइस में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। इंडिया का थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, यूएस का थोड़ा उससे चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। होस्टिंग एक सिंगल डोमेन होस्टिंग होती है, मल्टीपल डोमेन होस्टिंग होती है। सिंगल डोमेन का मतलब होता है कि आपने एक डोमेन परचेज किया abc.com, ओके, तो डोमेन परचेज किया, आपको इसके लिए होस्टिंग भी चाहिए, तो आपने एक होस्टिंग परचेज किया जिसका प्राइस हो सकता है, ठीक है, होस्टिंग का प्राइस था आपका 1,000 रुपए का। तो आपने वेबसाइट आपकी रेडी हो गई है, आपने लाइव कर दिया वेबसाइट को। अब आपको एक डोमेन और परचेज, आपके माइंड में आया कि चलिए मुझे एक वेबसाइट और क्रिएट करना है अपनी, तो आपने एक डोमेन न्यू परचेज किया xyg.com, ठीक है। इसका प्राइस होगा, चलिए मैंने मान लीजिए 500 रुपए का डोमेन मिला आपका। इसके लिए क्या करेंगे आप, फिर एक होस्टिंग परचेज करेंगे, तो फिर आप 1,000 रुपए की होस्टिंग परचेज करेंगे। तो ऐसे मुझे मान लीजिए 10 वेबसाइट रन करना है, तो मैं 10 के लिए अलग अलग होस्टिंग अगर बाय करूंगा तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा मुझे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मल्टीपल डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर एक ही होस्टिंग के ऊपर मल्टीपल डोमेन को होस्ट कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, 4-5 thousand का पड़ता है, लेकिन हम उस पर अनलिमिटेड वेबसाइट चला सकते हैं। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं होता, थोड़ी लिमिट होती है हर चीज की, बट आप 100 वेबसाइट 50 वेबसाइट्स भी आप उसके ऊपर रन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो डोमेन एंड होस्टिंग, होस्टिंग जब आप परचेज करेंगे तो आपसे डोमेन नेम पूछेगा हमेशा कि आपको ये होस्टिंग किस डोमेन के लिए परचेज करना है, तो आपको डोमेन नेम पहले परचेज करिए, उसके बाद हमेशा होस्टिंग करिए, ठीक है। होस्टिंग मिलने के बाद फिर आपको सी पैनल एंड अदर चीजें मिलती हैं, जो मैं आगे भी डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या मिलता है होस्टिंग लेने के बाद आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट जो होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती है मार्केट के अंदर। ई कॉमर्स वेबसाइट देखिए, अलग अलग टाइप्स के बिजनेस हैं तो अलग अलग टाइप्स की वेबसाइट्स मिलेंगी आपको। तो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, जहां पर आप पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं, जहां पर ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट करा रहे हैं आप यूजर से, वो ई कॉमर्स वेबसाइट में आ जाती है। जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, आजियो है, बहुत सारी वेबसाइट्स है मार्केट में, ठीक है। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती हैं, इंफॉर्मेटिव लाइक विकीपीडिया, विकी हाउ, बहुत सारी वेबसाइट्स जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको, ठीक है। तो विकीपीडिया पे आप जाते हैं, कुछ भी आपको सर्च करना है, विकीपीडिया पे आपको कंटेंट मिल जाता है। तो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। कॉर्पोरेट वेबसाइट्स, जहाँ पर आपकी बिजनेस वेबसाइट्स आ जाती है, जितनी चाहे वो आईटी कंपनी हो, चाहे कोई एप्पल है, आईफोन है, या इन टाइप की कॉर्पोरेट वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, या फिर कोई सर्विसेज वाली वेबसाइट हो सकती है आपकी, तो आप कॉर्पोरेट वेबसाइट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। सोशल मीडिया वेबसाइट्स आ जाती हैं, सोशल मीडिया में आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारी वेबसाइट चल रही हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सोशल मीडिया वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो वेबसाइट, पोर्टफोलियो में अपना पोर्टफोलियो लाइक अपने नाम से आप वेबसाइट बना रहे हैं कुछ भी, तो अपना पोर्टफोलियो दिखाना चाहते हैं, तो वो पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है। तो अलग अलग टाइप्स की हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी होती हैं। ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में क्या होता है, जैसे कोई न्यूज की वेबसाइट है, कोई सॉन्ग्स की वेबसाइट है, कोई मूवी की वेबसाइट है, ये सब ब्लॉगिंग वेबसाइट्स में आ जाए। कोई हेल्थ की वेबसाइट है, जो नॉर्मल ब्लॉग्स वगैरह अपने थॉट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं अपने कंटेंट पर वेबसाइट के ऊपर। तो अलग अलग टाइप्स की हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, बट जो भी वेबसाइट आपको क्रिएट करना है उसके लिए डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहेगी, ओके। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक वेबसाइट। तो डायनामिक वेबसाइट क्या होती है एंड स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा। स्टैटिक वेबसाइट होती है, डायनामिक। तो फर्स्ट आते हैं स्टैटिक वेबसाइट। तो ये कह रहा है स्टैटिक वेबसाइट या स्टैटिक वेब पेजेस आर रिटन इन लैंग्वेज सच एज एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस। देखिए, कोई भी वेब पेज को हम जब डिजाइन करते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए एचटीएमएल,
HTML के बिना आप कोई वेब पेज डिजाइन नहीं कर सकते। एंड CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। तो HTML एंड CSS, जावास्क्रिप्ट का हम यूज कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी और भी jQuery एंड अदर लैंग्वेज भी उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो डिजाइन हम लोग करते हैं वो HTML एंड CSS से करते हैं। ठीक है, CSS डिजाइनिंग के लिए यूज की जाती है HTML के साथ। तो HTML में जो वेबसाइट्स वगैरह बनती हैं वो सिंपल आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है, जिसके अंदर बहुत सारे आप चेंजेस नहीं कर सकते, कंटेंट डेली बेसिस पे आप अपडेट नहीं कर सकते। कभी आपने देखा होगा 5-10 पेजेस की वेबसाइट है, वो स्कूल की वेबसाइट है, बस कंटेंट डाल दिया हमने, डिजाइन किया और पब्लिश कर दिया, उसमें डेली एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही, कोई चेंजेस नहीं हो रहा, वो स्टैटिक वेबसाइट में काउंट होगी। ओके, एंड बहुत ज्यादा पेजेस भी नहीं होते उसके अंदर। स्टैटिक वेब पेजेस आर सिंपल इन टर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो वेब पेजेस जो होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, जैसे मैंने बताया कोई स्कूल की वेबसाइट है, कोई NGO की वेबसाइट है, उसमें 5-10 पेजेस की वेबसाइट्स है आपकी, तो वो सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती इसके अंदर, कोई ज्यादा हमें कुछ चेंजेस नहीं करना उसके अंदर। एंड यहाँ पर आते हैं डायनामिक के ऊपर। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको स्टैटिक के बताए, यहाँ पर डायनामिक में कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है। तो डायनामिक वेब पेजेस आर रिटन इन लैंग्वेज सच एज ASP, JSP, PHP, जावा एंड अदर बहुत सारे .NET, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। तो डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में ये सारी लैंग्वेजेस यूज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे PHP है तो PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी, एंड उसके साथ डेटाबेस भी यूज होते हैं कुछ। ठीक है, मैं थोड़ा टेक्निकल चीजें आपको बता रहा हूँ। तो डेटाबेस कौन सा होगा, जैसे आपने कभी सुना होगा SQL, MySQL, एंड उसके अलावा ओरेकल होता है आपका। ठीक है, एंड SQL डेटाबेस होता है आपका। ठीक है, MS एक्सेस भी एक डेटाबेस है, MS एक्सेस डेटाबेस होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, HTML, PHP डेटाबेस, SQL वगैरह, MySQL यूज हो रहा है आपका, एंड CSS यूज हो रही है। ये सारी चीजें आपकी एक साथ यूज हो रही है इसके अंदर, डायनामिक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव भी हो रही है, एंड वहां पर फैच करा कर आपकी वेबसाइट पे भी दिखा रही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP वगैरह आपकी। तो फ्रिक्वेंटली चीजें चेंज हो रही है डायनामिक वेबसाइट के अंदर, लेकिन HTML वाली वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल है, आपका कंटेंट शो हो रहा है बस आपकी। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है डायनामिक में, डायनामिक वेब पेजेस आर कॉम्प्लिकेटेड। तो वो डायनामिक वेब पेजेस हाँ कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, बहुत सारे पेजेस बनाने पड़ते हैं हमें, यहाँ पर प्रोडक्ट पेज अलग जा रहा है, कैटेगरी पेज अलग जा रहा है हमारा। तो जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिसमें हो सकता है 500 पेज हो या 1000 पेजेस हो, वो डायनामिक में ही काउंट होती है, वो डायनामिक पेज ही बनते हैं इसके अंदर हमेशा। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट आता है स्टैटिक के अंदर, स्टैटिक वेब पेज टेक लेस टाइम फॉर लोडिंग देन डायनामिक वेब पेज। तो देखिए लोडिंग टाइम क्या होता है, वो इसका फास्ट होता है, थोड़ा सा फास्ट इसलिए देखिए पेजेस कम है, सिंपल कंटेंट है, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग यूज नहीं की गई इसके अंदर, इसलिए लोडिंग टाइम क्या है, फास्ट है इसका। लेकिन डायनामिक में क्या है आपका, डायनामिक वेब पेज टेक मोर टाइम फॉर लोडिंग, तो उसके अंदर पेजेस ज्यादा होते हैं। लोडिंग टाइम देखिए हम स्पीड कम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लोडिंग टाइम की स्पीड आप फास्ट कर सकते हैं। तो लोडिंग टाइम ज्यादा इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके पेजेस बहुत ज्यादा है, लोडिंग इमेज लोड होने में टाइम लग रही है, कंटेंट फैच करा के डेटाबेस से दिखाने में टाइम लग रहा है, तो इसलिए लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहता है इसका। क्विक टू डेवलप स्टैटिक में, तो डेवलप देखिए आप आसानी से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, कि 5 पेजेस आपको डेवलप करना है तो आपको टेम्पलेट्स वगैरह आप यूज करेंगे, डेवलप हो जाएगी आपकी वेबसाइट। लेकिन डायनामिक वेबसाइट के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। देखिए आपने कभी सुना होगा एक फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है। तो आपको क्या है कि आपने HTML में फ्रंट एंड तो रेडी कर दिया आपने, लेकिन अब आपको क्या करना है, बैक एंड में उसकी फंक्शनलिटी पे, जैसे आपने कभी देखा होगा सबमिट बटन है, सबमिट बटन वर्क कब करेगा, सबमिट आपने एक इंक्वायरी फॉर्म या कॉन्टेक्ट से एक फॉर्म बनाया, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, सारी चीजें आपने देखा होगा, एंड यूजर सबमिट करेगा। तो HTML में आपने डिजाइन तो कर दिया, लेकिन अब उसके अंदर सबमिट बटन पे प्रोग्रामिंग होगी, PHP प्रोग्रामिंग होगी। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा हमेशा, या आप प्रोग्रामिंग करेंगे, उसकी वैल्यू को अपनी मेल पे या डेटाबेस में सेव कराएंगे आप, या मेल पे भेजेंगे आप उसको, तो हमेशा टाइम लगता है। तो इसमें डायनामिक वेबसाइट में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड स्टैटिक पे आते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस रिक्वायर लेस वर्क एंड कॉस्ट इन डिजाइनिंग दैट। स्टैटिक वेबसाइट में क्या हो रहा है कि पेज कम है तो आपकी कॉस्ट भी कम जा रही है, क्योंकि आपके 10 पेजेस या 15 पेजेस या थोड़ी सी छोटी वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो ठीक है टाइम कम लग रहा है और कॉस्ट भी कम जाएगी। डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक में आपके पेजेस ज्यादा होते हैं हमेशा, प्रोग्रामिंग ज्यादा होती है, बैकएंड में ज्यादा काम करना पड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग भी हमेशा हाई होती है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया वो आपको, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक। आज के डेट में जितनी वेबसाइट्स बनती हैं वो डायनामिक ही बनती है ज्यादातर। वर्डप्रेस जैसे आपने प्लेटफॉर्म सुना होगा, जूमला है, विक्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सब डायनामिक पे है, शॉपिफाई डायनामिक। तो आज के डेट में डायनामिक पे ही जाते हैं लोग, स्टैटिक वेबसाइट इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है।
ओके, तो अभी हम आते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। मैंने आपको स्टैटिक डायनामिक बताया, डोमेन होस्टिंग कैसे हमें परचेज करना चाहिए। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल के ऊपर कि हमें सेटअप कैसे करेंगे डोमेन होस्टिंग को। तो डोमेन होस्टिंग देखिए हमारे पास अभी ऑलरेडी है, हमें न्यू परचेज नहीं करना। एंड उस डोमेन होस्टिंग के ऊपर हम वेबसाइट कैसे सेटअप करेंगे वो आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते हैं तो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको मेल पर प्रोवाइड करता है। तो जिसमें से एक होता है आपका सी पैनल, सी पैनल, कंट्रोल पैनल, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैनल। जैसे हमारा लैपटॉप है, सिस्टम है, उसका भी कंट्रोल पैनल होता है। उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होस्टिंग प्रोवाइडर आपको सी पैनल प्रोवाइड करता है, कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल में क्या होता है, इस कंट्रोल पैनल में आप अपनी बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस ईमेल आईडी आपने देखा होगा कि लाइक abc.com आपका डोमेन है और आपको अपने बिजनेस के लिए ईमेल आईडी क्रिएट करना है, तो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर ही आपको देता है कि कितनी बिजनेस ईमेल आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल प्लान में आपको 5 मिलती है, बाकी अनलिमिटेड प्लान में आप अनलिमिटेड बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर अपने नेम से बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करना है, तो मैंने सचिन डॉट, ठीक है, या @ बिजनेस ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर बिजनेस ईमेल आईडी आप बना सकते हैं एंड डेटाबेस आपको मिलता है, फाइल्स को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी अदर चीजें आपको सी पैनल के अंदर मिलती है। तो सी पैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पूरी वेबसाइट को, पूरे होस्टिंग या सर्वर को आप मैनेज कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर सी पैनल में एंटर करेंगे एंड उसके अंदर हम वर्क करेंगे वर्डप्रेस पे। आई थिंक आपको पता हो कि वेबसाइट जो बनती है वो अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें से एक प्लेटफॉर्म आता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेयर यू कैन प्लान, प्रोड्यूस, मैनेज, पब्लिश एंड मेजर योर रिजल्ट इन वन प्लेस। क्या आप एक ही जगह पर सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं, वो होता है हमारा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस जैसे सीएमएस मार्केट के अंदर और भी है, जैसे विक्स का नाम आपने सुना होगा, विक्स भी है, जुमला है। इसके अलावा बहुत सारे मार्केट में सीएमएस है जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हम वर्डप्रेस पे ही बनाएंगे। 70% 80% जो वेबसाइट्स बनती है वो वर्डप्रेस के ऊपर चलती है। वर्डप्रेस पर ही आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे हम एंड उस पे मैं आपको डिजाइनिंग बताऊंगा कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर किसी भी वेबसाइट को। तो सबसे पहले हम आते हैं सी पैनल पर, ठीक है। अभी हमने जो होस्टिंग परचेज की है वो होस्ट क्रिएटर से की है, जैसे मैंने आपको बताया था गोडैडी, बिग रॉक। तो हम ये होस्ट क्रिएटर के अंदर यहाँ पर एंटर किया डैशबोर्ड में एंड यहाँ पर एक easyloanindia.online एक डोमेन है एंड होस्टिंग है इसकी, नीचे सिंगल डोमेन लाइन है। होस्टिंग भी देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, हमने जो होस्टिंग परचेज की है वो लिनक्स होस्टिंग परचेज की है। अब हम एंटर करते हैं सी पैनल में कि हमें वर्डप्रेस की एक वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा। जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे उसके बाद फिर हम उसके ऊपर वेबसाइट सेटअप करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पर सी पैनल, गो टू सी पैनल, ओके। एंड मैं अगेन क्लिक करता हूँ सी पैनल के ऊपर। देखिए गाइस, आज के सेशन के बाद आपको अगर कोई वेबसाइट बनाने के सोच रहा है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, डोमेन होस्टिंग एंड कुछ भी इश्यू आता है तो मुझसे आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं गो टू सी पैनल। तो मैंने सी पैनल पे क्लिक किया। सी पैनल ये होता है कंट्रोल पैनल। देखिए हम बिजनेस ईमेल आईडी की जो बात कर रहे थे, हम बिजनेस ईमेल आईडी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करूंगा एंड उसके बाद हम डिजाइनिंग पार्ट पाएंगे। तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए देखिए डेटाबेस भी यहाँ पर, जहाँ पर हमारा सारा डेटा सेव होता है। तो वर्डप्रेस के लिए हम यहाँ पर आते हैं लास्ट में, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वर्डप्रेस, आप इस पे क्लिक करिए। इंस्टॉल नाउ, यहाँ पर आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो हम अभी मेन जो डोमेन है हमारा .online, easyloanindia.online, इस पे ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है। तो हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे इसी डोमेन के अंदर और उस पे हम अपनी वेबसाइट को रन करेंगे। तो हमने यहाँ पर .online के आगे फोल्डर क्रिएट किया है डेमो के नाम से, .online/demo। तो हम इस पे भी अपनी एक वेबसाइट रन कर सकते हैं। तो डेमो के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट किया एंड इसके अंदर डेमो के अंदर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा एंड इसी पे हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। यूजर नेम एंड पासवर्ड, देखिए कोई वेबसाइट होती है तो आपको अगर डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है तो आपको यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड आएगा आपका। तो यूजर नेम आपका एडमिन है तो मैं एडमिन ही रखता हूँ अभी इसको, एंड पासवर्ड अभी मैं यहाँ पर रखता हूँ एडमिन @1 2 3 4 5, ओके।
आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, जो भी आप ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं, तो आप कोई भी एक ईमेल आईडी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैंने अपनी ईमेल आईडी यूज किया। स्क्रॉल डाउन करेंगे आप और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल। मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर सकता हूँ वर्डप्रेस को। ओके, तो 1 मिनट का लगभग टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का, और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा आपका। 2 प्रोसेस होते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के, ठीक है। मैं दोनों ही प्रोसेस आपको बताऊंगा। एक फर्स्ट आपका प्रोसेस है कि 1 क्लिक पे आपने इंस्टॉल कर दिया, मैंने अभी 1 क्लिक किया और वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल हो गया। एंड सेकंड प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि मैनुअली भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा वो, एंड आप उसके थ्रू अगर करते हैं तो बहुत ज्यादा सिक्योर माना जाता है कि वर्डप्रेस आपको इतनी जल्दी हैक नहीं होगा, तो आप सेकंड वाला प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका 1 क्लिक पे इंस्टॉलेशन हो गया। यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं बनाया आपने। डेटाबेस क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया इसके अंदर, फाइल्स वगैरह सारी आ गई आपकी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो वर्डप्रेस आपका लाइव हो गई है वेबसाइट, किस पे, डेमो वाले फोल्डर के ऊपर। तो फर्स्ट यूआरएल हमारा यहाँ पर दिया है easyloanindia.online/demo। /demo पे आप क्लिक करोगे एंड ये वर्डप्रेस की वेबसाइट जब लाइव होती है तो ये डिफॉल्ट एक थीम होती है, टेम्पलेट होता है वर्डप्रेस का। यहाँ पर आपकी ये वेबसाइट लाइव हो गई। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था जहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट को लाइव किया 1 क्लिक इंस्टॉलेशन के ऊपर। सेकंड हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये टेक्निकल चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड प्रोसेस, तो हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं। तो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, तो मैं भी इसको अनइंस्टॉल करूंगा और सेकंड प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस, देखिए अदर प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे थे, जूमला, वो भी आप यूज कर सकते थे। ओवरव्यू, एंड इस वाले जो डेमो वाला जो मैंने इंस्टॉल किया था, मैं यहाँ से इसको अभी रिमूव करूंगा। तो मैंने अभी रिमूव किया इसको, एंड रिमूव इंस्टॉलेशन। मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है अभी इसको। अब मैं यहाँ पर दोबारा से एक इंस्टॉल करके दिखाता हूँ मैनुअली। तो मैनुअली मुझे अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जाना होगा वर्डप्रेस की वेबसाइट पर, wordpress.org, या फिर आप गूगल में टाइप कर सकते हैं डाउनलोड वर्डप्रेस। तो डाउनलोड वर्डप्रेस, वर्डप्रेस एप्लीकेशन है, ठीक है, एंड इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। तो डाउनलोड वर्डप्रेस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करूंगा। देखिए वर्डप्रेस के अपडेशन आते रहते हैं और पीएचपी जो लैंग्वेज है उसके भी अपडेशन आते रहते हैं। जैसे पीएचपी अभी जो सपोर्ट कर रहा है वो 7.4 वाला वर्जन कर रहा है, ठीक है। तो जैसे पीएचपी 4.5 था, 5 पॉइंट कुछ था, वो अभी नहीं चलता, आपका सी पैनल ही सपोर्ट नहीं करेगा, अभी भी याद रखना, वो नहीं करेगा सपोर्ट, ठीक है। तो पीएचपी अपडेट होता है तो आपका वर्डप्रेस भी यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक किया एंड ये वर्डप्रेस की फाइल मेरे यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। तो ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा मुझे ये। तो वर्डप्रेस मेरा डाउनलोड हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको अपलोड करना है कहाँ पर, सी पैनल के अंदर। तो देखिए सी पैनल में हमारे एक ऑप्शन होता है फाइल मैनेजर। तो सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर, देखिए सारी वेबसाइट की जो फाइल्स होती है ना वो इसी के अंदर स्टोर होती है। तो यहाँ से किसी भी फाइल को आप मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस मिलेंगे। फाइल मैनेजर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको पब्लिक एचटीएमएल। तो फोल्डर है इसके अंदर पब्लिक एचटीएमएल, एंड यहाँ पर आप एक, अभी हमने क्या करना है, प्राइमरी डोमेन पे अपलोड नहीं करना जो हमारा डॉट ऑनलाइन था, हमें एक न्यू फोल्डर बनाकर अपलोड करना है। तो हमें एक यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है फोल्डर, एंड क्या नाम रखना है, डेमो। मुझे डेमो के नाम से ही यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर डेमो नाम से फोल्डर क्रिएट किया, पब्लिक एचटीएमएल वाले फोल्डर, इसमें वर्डप्रेस यूज करना है। तो देखिए वर्डप्रेस अपलोड करने के लिए हम डेमो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड वर्डप्रेस। तो मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस पे 5 मिनट भी टाइम ले लेगा आपको लगभग। तो अभी मेरे पास पहले से है अपलोडेड वर्डप्रेस की फाइल, जो मैंने डाउनलोड की है वो पहले से है मेरे पास। यहाँ पर वर्डप्रेस का जो वर्जन मैं दिखा रहा था, मैं इसी फाइल को जिप फाइल, देखिए अपलोड जो करेंगे जिप फाइल ही करनी है आपको, आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत सारी फाइल्स हो जाएंगी, आप अपलोड करते करते थक जाएंगे इसमें। तो आप जिप फाइल अपलोड करिए। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो जिप फाइल है इसको मैं कॉपी करके इस डेमो फोल्डर के अंदर पेस्ट करूंगा, ठीक है, ये अपलोड करूंगा। मैंने यहाँ से कॉपी किया
राइट क्लिक किया मैंने इस पे, कॉपी, एंड किस में करना है मुझे, डेमो वाले फोल्डर में, तो मैंने डेमो एंड कॉपी फाइल्स। तो मेरे वर्डप्रेस की फाइल यहाँ पर कॉपी हो गई, चेक करते हैं इसको, तो देखिए ये मेरी फाइल यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर जाकर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है इस पे, एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट फाइल। देखिए, तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट होगी। अब इसका कोई काम नहीं है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया इस फाइल को। और वर्डप्रेस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया, इसके अंदर देखिए सारी फाइल्स आ गई आपके यहाँ पर। इन फाइल्स को मुझे क्या करना है, अपने डेमो वाले फोल्डर में, क्योंकि डेमो के अंदर एक वर्डप्रेस के नाम से फोल्डर बन गया, तो मुझे मेरा जो पाथ रहेगा डेमो रहेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी एंड मूव, किसमें, वर्डप्रेस फोल्डर में नहीं रखना था, मुझे रखना है डेमो वाले फोल्डर में, इसमें। तो हम यहाँ पर वो सारी फाइल्स को मूव करेंगे डेमो फोल्डर के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर मैनुअली आप कर रहे हैं तो एक फोल्डर क्रिएट किया, या फिर प्राइमरी डोमेन है तो प्राइमरी डोमेन में फोल्डर क्रिएट करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको डायरेक्ट यहाँ पर पब्लिक एचटीएमएल वाले ऑप्शन पे आपको इसी के अंदर सारी फाइल्स को कॉपी करना है, फिर फोल्डर की जरूरत नहीं है। तो हम एक फोल्डर में कर रहे हैं इसलिए हमने क्रिएट किया। डेमो के अंदर हमने क्या किया, वर्डप्रेस को अपलोड किया और वहां पर सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा आपको एक डेटाबेस भी चाहिए, क्योंकि आप डायनामिक वेबसाइट बना रहे हैं, तो यहाँ पर अगर स्टैटिक वेबसाइट होती तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती मेरे यहाँ पर। तो हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है डेटाबेस के अंदर, तो हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन आ रहा है इसमें, माई एसक्यूएल डेटाबेस, आप इस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं डेमो के नाम से। तो मैंने डेटाबेस का नेम रखा डेमो, क्रिएट डेटाबेस, गो टू बैक, उसके बाद यूजर भी क्रिएट करना होता है माई एसक्यूएल में, तो यूजर भी मैंने डेमो के नाम से रखा, और यहाँ पर मैं कुछ भी एक पासवर्ड रख देता हूँ। ठीक है, तो हम एक पासवर्ड रख देते हैं, डेमो। ओके, क्रिएट यूजर, तो डेटाबेस क्रिएट करना है, फाइल्स अपलोड करनी है, गो टू बैक, ओके। तो डेटाबेस क्रिएट होगा, फाइल्स अपलोड होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है दोबारा से अपनी फाइल्स के ऊपर डेमो वाले फोल्डर में, और यहाँ पर एक फाइल का नेम होता है wp config, ये इसका नेम चेंज करना है बस आपको। सैंपल है ना, सैंपल बस आप रिमूव कर दीजिए यहाँ से, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेगा। एंड इसके अंदर आपको wp config में आपको डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है आपका एडिट, आप एडिट पे क्लिक करिए। एंड यहाँ से आपसे पूछ रहा है, देखिए डेटाबेस नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो हमने बनाया था डेटाबेस का नेम डेमो, यूजर नेम भी हमारा डेमो था, पासवर्ड मैंने रखा था डेमो 001 एंड सेव। देखिए, अब आपको क्या करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और लाइव करना है वेबसाइट को। तो आप जाएंगे न्यू टैब में और यहाँ पर टाइप करेंगे जो भी आपका डोमेन नेम था, एजिलोन इंडिया /डेमो, क्योंकि डेमो के अंदर ही आपका वर्डप्रेस है, तो डेमो हो गया। तो उस समय हमने प्रीफिक्स जो नेम आ रहा था वो यूज नहीं कर रहे थे, हम डेमो कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा था। अब आपसे पूछेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो वर्डप्रेस मुझे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू। साइट का टाइटल, मैं मान लीजिए एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की वेबसाइट बना रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग की बना रहा हूँ, तो मैं कुछ भी यहाँ पर टाइटल मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। यूजर नेम, तो देखिए मैंने यूजर नेम वहां पर भी मैं यूज कर रहा था, जैसे एडमिन किया था मैंने यूजर नेम में, एंड पासवर्ड भी अभी मैं एडमिन ही रखता हूँ, या मैं पासवर्ड चलिए अभी एडमिन रख देते हैं हम 45। ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, एंड इंस्टॉल। देखिए, तो एक तरीका था, मैंने वन क्लिक पे इंस्टॉल कर दिया। एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था कि आप डेटाबेस बना रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, फाइल अपलोड कर रहे हैं और फिर आप यूज कर रहे हैं।
अब हम लॉगिन करते हैं अपने वर्डप्रेस को, तो लॉगिन, एंड जो हमने यूजर नेम यूज किया था वहां पर एडमिन, एंड पासवर्ड था हमारा admin@12345, लॉगिन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम वर्डप्रेस डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं सी पैनल के अंदर। 2 प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, वेबसाइट सेटअप करना है, डिजाइन करना है। तो मैं सी पैनल को क्लोज कर देता हूँ, इसकी मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। ओके, तो एक टैब में मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड लॉगिन किया हुआ है, दूसरे टैब में मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। दूसरे टाइम में वेबसाइट ओपन क्यों किया है मैंने, क्योंकि अगर मैं डैशबोर्ड में कोई भी चेंजेस करूंगा तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकता हूँ कि वो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी जो वेबसाइट है, अभी जो हमारे सामने एक टेम्पलेट या थीम हमारी शो हो रही है, तो मुझे क्या करना है, थीम चेंज करनी है, डिजाइन चेंज करना है अपनी वेबसाइट का। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे थीम्स अवेलेबल है मार्केट में, फ्री भी है, पेड भी है। तो अभी हम एक फ्री थीम यूज करेंगे। कोई भी थीम यूज करने के लिए आप wordpress.org की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर फ्री थीम्स मिल जाती हैं। अदरवाइज वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में वर्डप्रेस की फ्री थीम्स अवेलेबल है, वहां से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। थीम चेंज करने के लिए आपको जाना है एपियंस, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका थीम्स। करंट थीम हमारी ये है, एक्टिवेट थीम पे, न्यू थीम के लिए आप क्लिक करेंगे ऐड न्यू थीम पर। देखिए कुछ थीम्स वर्डप्रेस की बहुत सारी फ्री अवेलेबल है, आप यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरी देखिए यहाँ पे एक थीम है जनरेट प्रेस, या कोई भी आप थीम इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे एक थीम है, बहुत पॉपुलर थीम है जनरेट प्रेस, या फिर एस्ट्रा एक थीम है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। तो अभी मैंने जनरेट प्रेस थीम को इंस्टॉल किया। एक्टिवेट थीम, ओके। चेक करने के लिए आप जाएंगे वेबसाइट पर अपनी, और यहाँ पर करेंगे आप रिफ्रेश। तो ये रिलोड हो गई है हमारी थीम या वेबसाइट। तो अभी देखिए थीम चेंज हो गई, डिजाइन ये भी थोड़ा सिंपल सा डिजाइन है, बट अभी इससे पहले जो डिजाइन था वो यहाँ से हट के ये वाला डिजाइन हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर डिजाइनिंग करनी है। देखिए हमारी जो वेबसाइट होती है उसका एक सबसे पहला जो पेज होता है वो होम पेज होता है हमारा, ठीक है। अब होम पे देखिए टू टाइप्स की वेबसाइट हो सकती है। एक जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, आपने देखा होगा। ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट में बहुत सारी पोस्ट आती हैं, लेटेस्ट कॉन्टेंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई न्यूज की वेबसाइट आज तक, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लेटेस्ट पोस्ट आ रही है, कंटेंट आ रहा है आपका। देखिए कुछ एक बिजनेस वेबसाइट होती है, वहां पर क्या होता है, एक फ्रंट पेज होता है जिसको आप डिजाइन करते हैं बहुत अच्छे से, और वही यूजर्स को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, या कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप कीवर्ड। फर्स्ट वेबसाइट है आपकी ये क्या है, एक बिजनेस वेबसाइट है आपकी। तो इसमें क्या है, एक पेज को क्रिएट किया गया है और उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर कोई कंटेंट डेली बेसिस का कंटेंट नहीं आ रहा कि डेली कंटेंट अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस वेबसाइट ही क्रिएट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना एक डिजाइन करेंगे पेज को। तो हम एक पेज क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट में, जिसका नाम हम देते हैं होम पेज, ठीक है। तो अभी होम पेज पे क्या है, आपके हेलो वर्ल्ड लिख कर आ रहा है। तो ये डेली अपडेट करने के लिए पोस्ट होती है, वो आ रही है यहाँ पर। हमें पोस्ट नहीं बनानी, कैटेगरीज नहीं बनानी, हमें एक पेज क्रिएट करना है। हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर सबसे टॉप में जो होता है वो हेडर होता है, साइड बार होती है जो साइड में आ रही है, सर्च डिजाइन पोस्ट। उसके बाद सबसे लास्ट में फुटर होता है, और बीच वाला जो पार्ट होता है बॉडी वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको एक पेज क्रिएट करना है। ऐड न्यू पेज पे आप जाएंगे डैशबोर्ड में अपने, ऐड न्यू पेज, एंड पेज का टाइटल। तो पेज का जो टाइटल होगा वो मैंने यहाँ पर अभी लिखा होम या होम पेज। इसके अंदर कंटेंट आप लिख सकते हैं, बट कंटेंट इमेज लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे हम। हमने क्या करना है, इसको पब्लिश करना है। देखिए ड्राफ्ट में सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं, कि मुझे देखिए अभी पेज पब्लिश नहीं करना चाहता, नहीं दिखाना चाहता, मैं बाद में दिखाना चाहता हूँ, ड्राफ्ट में सेव करूंगा। प्रीव्यू दिखाना है, प्रीव्यू दिखा सकता हूँ, देख सकता हूँ मैं इसका। एंड हम करेंगे अभी पब्लिश। पेज पब्लिश हो रहा है। एंड देखिए वर्डप्रेस के अंदर क्या होता है, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स भी होते हैं। प्लगइन्स क्या है, प्लगइन्स एक एप्लीकेशन ही होती हैं, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में एप्स होते हैं, आपने देखा होगा। वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है।
बट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए ज़्यादा प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो सर्वर का लोडिंग टाइम बढ़ेगा, हमेशा स्पीड भी आपकी स्लो होगी वेबसाइट की। तो मैंने एक होम पेज पब्लिश किया एंड इसको हम करते हैं रिफ्रेश। देखिए हमारी वेबसाइट पे एक होम पेज आ गया। सैंपल पेज डिफॉल्ट है, ये हर थीम के साथ आता है, वर्डप्रेस के साथ। हमारा होम पेज है जो कि ब्लैंक है, अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो ब्लैंक है। अब इसको डिजाइन करेंगे और इसको हम एज अ होम पेज सेट करेंगे कि कोई भी हमारी वेबसाइट ओपन करे तो यही पेज ओपन हो। तो होम पेज सेट करने के लिए आपको जाना है डैशबोर्ड पे दोबारा से, और हम जाएंगे यहाँ पर, एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन है रीडिंग। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि स्टैटिक लेटेस्ट पोस्ट रखना है या स्टैटिक पेज रखना है। तो अभी देखिए पोस्ट वाला ऑप्शन है, हम सेलेक्ट करेंगे स्टैटिक पेज, और यहाँ पर एक ऑप्शन है होम पेज। हम हमारा जो होम पेज क्रिएट किया था हमने उसको सिलेक्ट किया, सेव। अब कोई भी आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो होम पेज ही आपका शो होगा। तो मेरा होम पेज यहाँ पर विजिबल है। होम पेज भी चाहिए मुझे, देखिए साइड बार नहीं चाहिए मुझे पेज के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये पेज है, ये फुल विड्थ में है पेज, यहाँ पर कोई साइड बार नहीं है। तो मुझे अगर साइड बार नहीं चाहिए यहाँ पर, तो अभी एक प्लगइन भी इंस्टॉल करता हूँ मैं इससे पहले। ऐड न्यू प्लगइन पे आप जाएंगे एंड यहाँ पर एक प्लगइन आ रहा है क्लासिक एडिटर, तो अभी हम इसका यूज करते हैं। ये आपका एडिटर चेंज कर देगा, जहाँ हम कंटेंट लिखते हैं वो एडिटर चेंज हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो आते हैं पेज के ऊपर दोबारा से, पेजेस पे एंड एडिट पेज। ठीक है, देखिए अभी जो एडिटर था वो थोड़ा अलग था। अब ये क्लासिक एडिटर मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया तो एडिटर हमारा डैशबोर्ड चेंज हो गया। हमें साइड बार नहीं चाहिए तो आप साइड बार हटा सकते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा वो कैसे हटाएंगे। एंड देखिए डिजाइनिंग के लिए मैंने आपको जैसे बताया प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस में, हर चीज के लिए प्लगइन्स है। तो यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए एक प्लगइन आता है एलिमेंटर, आप उसका यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग उससे आप बहुत अच्छा एक डिजाइन बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का, कि कहाँ पर आपको स्लाइडर रखना है, इमेज कहाँ रखनी है, वीडियो कहाँ पर लगानी है, बॉक्सेस कितने यूज करने हैं, वो उस प्लगइन से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में जितनी वेबसाइट्स डिजाइन होती है आज के डेट में, बहुत अच्छी वेबसाइट्स डिजाइन होती है, वो सब प्लगइन से ही होती है, एलिमेंटर प्लगइन से ही होती है। जैसे ये वेबसाइट है अभी आपके सामने, तो ये वेबसाइट तो वर्डप्रेस की नहीं है। एक वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, आपने सुना होगा इंडियन एक्सप्रेस, जो न्यूज़पेपर भी आता है इसका, काफी बड़ी वेबसाइट है। ये वर्डप्रेस पे चलती है वेबसाइट। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस पे ही चल रही हैं, और जो लाखों ट्रैफिक डेली उनकी वेबसाइट पर आता है। तो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं वर्डप्रेस अनसिक्योर भी है, ये हैक भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से वेबसाइट बनाइए सिक्योरिटी पर्पज से, आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे वेबसाइट है, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, एक वेबलाइजर प्लगइन है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी हुई है। तो आपको देखो CMS दिखा रहा है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो वर्डप्रेस से बहुत अच्छी वेबसाइट चल रही है। तो ये वेबसाइट इतनी बनी है, सब प्लगइन से डिजाइन की जाती है प्रॉपर तरीके से, कस्टम कोड भी यूज किया जाता है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है एलिमेंटर। तो आप जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन पर एंड यहाँ पर आप सर्च करेंगे प्लगइन नेम एलिमेंटर। इसके अलावा और भी प्लगइन्स आते हैं, विजुअल कंपोजर भी आता है, एलिमेंटर भी है। तो फर्स्ट प्लगइन है एलिमेंटर, एंड इसको कितने लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है तो इंस्टॉलेशन भी दिखा रहा है आपको। तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, एक्टिवेट। प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। हम सेटअप पूरा नहीं कर रहे अभी इसको। देखिए पेड भी आता है एलिमेंटर, तो कुछ ऑप्शंस फ्री में आपको मिलते हैं, कुछ आपको पेड भी मिलते हैं। प्रो वाले पे भी आप जा सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन इंस्टॉल हो गया एलिमेंटर, हमारे पास एक होम पेज है। अब हमें क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। होम पेज हमने सेट भी कर दिया अपनी फ्रंट पेज पे वेबसाइट पर, आपको डिजाइन करना है। तो डिजाइनिंग के लिए हम वापस जाएंगे पेजेस पे एंड एडिट, ठीक है। और इसको हम जैसे साइड बार की बात कर रहे थे कि हमें ये साइड बार नहीं दिखानी अपनी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है एलिमेंटर फुल विड्थ, कि मुझे जो पेज चाहिए फुल विड्थ में चाहिए, मुझे साइड बार नहीं चाहिए। तो मैंने फुल विड्थ किया और अपडेट कर दिया इसको। देखिए जो भी चेंजेस आप करोगे हर बार अपडेट करना होगा आपको। तो अपडेट किया एंड यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए अभी पेज ब्लैंक हो गया है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमने साइड बार भी हटा दिया। अब इसके ऊपर आप डिजाइनिंग करोगे। देखिए डिजाइनिंग के यहाँ पर दो चीजें, यहाँ पर एक तो मैं यहाँ पर कंटेंट राइटिंग कर सकता हूँ, कंटेंट टाइप कर सकता हूँ,
मुझे कंटेंट नहीं करना, मुझे डिजाइन करना है किसके साथ, एलिमेंटर के साथ। तो हमें क्लिक करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट विद एलिमेंटर, तो आप इस पे क्लिक करोगे। एंड यहाँ पर आपको अपने पेज को डिजाइन करना है, तो ये बॉक्स आ रहा है एक बनकर, और इसके अंदर यहाँ पर एलिमेंटर के कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। देखिए ये कुछ ऑप्शंस है एलिमेंटर के जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपको हेडिंग करना है, इमेज यूज करना है, टेक्स्ट एडिटर यूज करना है, वीडियो करना है, बटन है। एंड ये कुछ प्रो वाले ऑप्शंस हैं, आप प्रो वाले भी यूज कर सकते हैं। अगर प्रो पे जाते हैं आप प्लगइन पर, तो फिर ये ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले टॉप में अगर स्लाइडर यूज करना है, स्लाइडर कर सकता हूँ। तो मुझे अभी स्लाइडर नहीं करना, मैं सिंपल एक इमेज यूज करता हूँ टॉप में, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ पर जो इमेज वाला ऑप्शन है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मुझे उठाकर लेकर जाना है इमेज को यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी इमेज वाला ऑप्शन आ गया। एंड इसमें मुझे एक इमेज अपलोड करनी है, तो कोई भी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं। साइज आपको देखना पड़ेगा किस साइज की आपको रखनी है इमेज। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है चूज इमेज, आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपलोड, कोई भी इमेज आपके पास है तो आप उसे अपलोड कर लीजिए। जैसे मेरे पास एक इमेज है, ये मैंने अपलोड किया, ठीक है, सेलेक्ट। तो सबसे पहले ये एक इमेज अपलोड किया मैंने। देखिए स्लाइडर आप करना चाहते हैं, स्लाइडर भी कर सकते हैं, स्लाइडर का भी ऑप्शन है एलिमेंटर में। अदरवाइज उसके लिए और प्लगइन्स भी हैं, वो भी कर सकते हैं आप। स्लाइडर्स में क्या है, आपने 4-5 इमेजेस लगाए, वो स्लाइड्स चलता रहेगा, उसमें स्पीड क्या रखनी है, वो सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले एक इमेज आई मेरे पास, एंड चेक करने के लिए मैं यहाँ पर अभी पब्लिश कर देता हूँ इमेज लगाने के बाद। उसके बाद आप आएंगे वेबसाइट पर अपनी और यहाँ पर करेंगे रिफ्रेश। तो देखिए आपके सामने एक इमेज आ गई। इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, ठीक है, फुल विड्थ में भी ले सकते हैं आप इमेज को। उसके बाद आपको क्या क्या रखना है, तो जैसे मुझे यहाँ पर एक हेडिंग यूज करना है, फिर 2 बॉक्स यूज करने हैं, बॉक्स में इमेजेस और कंटेंट रखना है। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग यूज करता हूँ। तो सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं सर्विसेज का पेज बनाता हूँ। तो बैक जाते हैं। देखिए हेडिंग ऑप्शन है, मैंने हेडिंग को ड्रॉग एंड ड्रॉप किया। यहाँ पर हेडिंग का टेक्स्ट आ गया, मैंने टाइप किया जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया। मान लीजिए मेरी कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंडिया के अंदर, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। हेडिंग का साइज क्या रखना है, तो मुझे H2 रखना है, H1 रखना है, तो मुझे H2 ही रखते हैं। H1 करेंगे तो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, तो H2 रखते हैं इसको। स्टाइल पे जाएंगे आप, ठीक है। एंड स्टाइल पे जाने के बाद मुझे सेंटर में रखना है हेडिंग, तो मैंने सेंटर सेलेक्ट किया। देखिए अभी आप HTML में अगर वर्क कर रहे होते हैं या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप वर्क कर रहे होते हैं, तो आपको कोडिंग करना पड़ता है। हेडिंग के लिए पूरी कोडिंग कर रहे हैं आप, इमेज के लिए कोडिंग कोड लिख रहे हैं आप। वर्डप्रेस में बहुत इजी तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो हेडिंग में नहीं, मुझे कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हैं। HTML कलर कोड भी होता है, आपको पता होगा, कलर कोड होते हैं। गूगल पे सर्च करेंगे HTML कलर कोड, तो हर कलर का एक कोड भी होता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ कलर, मुझे ये वाला कलर यूज करना है। टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज आ जाएगा इसका, कि हेडिंग का साइज क्या रखना है, फॉन्ट की फैमिली क्या रखनी है। फॉन्ट फैमिली अभी ये है, तो मुझे जो साइज रखना है वो देखिए मैं यहाँ से रखता हूँ, ये मुझे एक साइज रखना है 50 का। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप पब्लिश करते जाइए या फिर अपडेट करते जाइए, आपका वेबसाइट पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, उसके बाद मुझे बॉक्सेस वगैरह चाहिए कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि 2 बॉक्स की एक साइड में इमेज हो और दूसरी साइड में मेरा कंटेंट हो। तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करोगे, इस वाले प्लस वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका 2 बॉक्स का, ठीक है, स्ट्रक्चर। आप इस पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट में आप रखेंगे इमेज, और सेकंड में मुझे रखना है तो एक कंटेंट या टेक्स्ट, ठीक है। तो इस पे बैक आते हैं। देखिए इमेज के लिए ऑप्शन है आपका इमेज का, तो मैंने इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इमेज आ गया। इमेज हम कुछ भी इसमें चूज कर लेते हैं। तो पहले से कोई अपलोड इमेज है नहीं हमारे पास, चलिए मैं एक न्यू इमेज अपलोड करता हूँ। मैंने एक न्यू इमेज अपलोड किया, ये हमारी इमेज आ गई। सेकेंड वाले ऑप्शन में मुझे रखना है टेक्स्ट, कुछ कंटेंट। तो कंटेंट के लिए आप बैक जाएंगे और कंटेंट एडिटर वाला पार्ट आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंटेंट पे आते हैं।
इसमें एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो कंटेंट में क्या करेंगे आप, टेक्स्ट एडिटर वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, और इसमें एक कंटेंट आ जाएगा आपका। तो कंटेंट चलिए मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ किसी भी वेबसाइट से। तो वो मेरे पास एक वेबसाइट है, इसका कंटेंट मैंने यहाँ पर कॉपी किया। ये तो ये कंटेंट है, कंटेंट थोड़ा सा कम है इसलिए इसका साइज थोड़ा सा बॉक्स के ऊपर आ गया। एंड इस इमेज का साइज भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्या आता है, जैसे मुझे हेडिंग है, हेडिंग इमेज के बिल्कुल नीचे, जस्ट एक नीचे आ रहा है, मुझे थोड़ा सा और नीचे इसको ड्रैग करना है हेडिंग को। तो आप इसकी सेटिंग्स में जाकर, एडवांस सेटिंग्स में जाकर भी चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इसके अंदर वर्डप्रेस में। तो जैसे मुझे यहाँ पर राइट या लेफ्ट या टॉप में रखना है मुझे मार्जिन। ओके सॉरी, हमने हेडिंग सेलेक्ट नहीं किया। हेडिंग पे जाएंगे एंड यहाँ पर मार्जिन पे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया हेडिंग को। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर राइट लेफ्ट साइज वगैरह सारी चीजें मैं एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद पब्लिश ऑप्शन है, आप इसको पब्लिश कर दीजिए एंड वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं इसको। पब्लिश हो रहा है अभी। Okay, ये पब्लिश हो गया है एंड यहाँ पर रिफ्रेश किया हमने। देखिए तो इमेज है सबसे पहले, उसके बाद आपकी हेडिंग है, उसके बाद आपका इमेज एंड टेक्स्ट है आपका। इसके बाद मुझे जैसे इंक्वायरी फॉर्म लगाना है या फिर मुझे कुछ और भी डिजाइन लगाना है, मुझे वीडियो लगानी है सपोज, तो मुझे वीडियो लगाना है तो मैं वीडियो भी यूज कर सकता हूँ। मुझे बटन यूज करना है, सबमिट, बाय नाउ, क्लिक हियर, तो आप बटन भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसी के नीचे एक बटन चाहिए मुझे, जहाँ पर इंक्वायरी नाउ या सबमिट का बटन मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे जैसे बटन यूज करना है तो मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूंगा। एक ऑप्शन है आपका बटन, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, सेंटर में ही रखना है मुझे बटन को, तो मैंने सेंटर कर दिया इसको। चलिए पहले हम नेम चेंज कर देते हैं बटन का। तो बटन का में मैंने लिखा जैसे क्लिक हियर अभी है, इसका चेंज कर सकते हो आप बाय नाउ या कुछ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसमें अभी बाय नाउ किया, तो एक बाय नाउ बटन है मेरा। अब बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे आप यूजर्स को। तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद मैं जाना चाहता हूँ यहाँ पर कोई वेबसाइट है abc.com या flipkart.com, मैं उस पर लेकर जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसका यूआरएल एंड इसका साइज वगैरह बटन का टेक्स्ट का आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बटन हो गया। एंड उसके बाद मुझे अगर कोई वीडियो यूज करना है तो आप वीडियो भी कर सकते हैं यहाँ पर यूज। तो वीडियो के लिए यहाँ पर यूट्यूब का ऑप्शन है या अदर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब के अलावा भी आप कोई लिंक यूआरएल आप यूज करना चाहते हैं। देखिए वीडियो हम अपलोड नहीं करते वर्डप्रेस के, वो वीडियो अपलोड करेंगे लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपका हमेशा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है वो अदर एक प्लेटफॉर्म या अदर एक सर्वर यूज करती है, ज्यादातर यूट्यूब का करती है, वहां से वहां पर अपलोड करती हैं एंड लिंक यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट डायरेक्ट अपलोड नहीं करती सर्वर के ऊपर अपना, क्योंकि उनका लोडिंग टाइम स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी वेबसाइट की। तो वीडियो अगर आपको करना है तो डायरेक्ट आप वीडियो भी यहाँ पर ऑप्शन है, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए एंड वीडियो का लिंक यूज करना पड़ेगा। तो यूट्यूब का लिंक भी हो सकता है, वो अदर कोई भी लिंक हो सकता है। ठीक है, तो मुझे अगर कोई वीडियो का लिंक यूज करना है तो मैंने जैसे यूट्यूब पे किया एंड यहाँ से मैं कोई लिंक कॉपी करता हूँ किसी वीडियो का। सपोज सॉन्ग्स मैंने सर्च किया, चलिए ये एक सॉन्ग है, इसका मैंने लिंक कॉपी किया मैंने। तो कॉपी करने के बाद आप इसको कॉपी पेस्ट करिए। ठीक है, तो फिर आपके एक वीडियो आ गया। तो इस टाइप से आप वीडियो भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ एंड प्ले भी आपकी वेबसाइट पर ही होगा ये। अब मुझे यहाँ पर चाहिए एक इंक्वायरी फॉर्म। देखिए आप जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, सबसे मेन रीजन क्या होता है, लीड जनरेशन। अगर आप बिजनेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके पास एक कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होना जरूरी है, कॉन्टेक्ट अस पेज होना जरूरी है। तो पेज नहीं बना रहे, हम चाहते हैं लास्ट में यूजर आएगा और एक इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा। तो इसके लिए हम प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और एलिमेंटर में ऑप्शन है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी एक प्लगइन इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसके लिए बैक चाहता हूँ डैशबोर्ड पे, इसको हम पब्लिश करते हैं एंड बैक आते हैं अभी डैशबोर्ड पर। एंड एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या फिर WP फॉर्म। ये प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए होता है हमेशा, आप कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं। तो मुझे सर्च करना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, इंस्टॉल नाउ।
एंड एक्टिवेट। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ गया। इसका एक छोटा सा शॉर्ट कोड होगा, बस आपको कॉपी करना है इसको एंड अपनी पेज पे जाकर लगाना है, जो भी आपका होम पेज था या कोई भी पेज था। तो देखिए अभी हम इसको एडिट करेंगे, होम पेज को एडिट विद एलिमेंट। अब नॉर्मल एडिट नहीं करना है आपको, एडिट विद एलिमेंटर के साथ जाना है और यहाँ पर एडिट करना है मुझे। तो मैं चाहता हूँ लास्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनकर आ जाए मेरे लास्ट में, एंड में वेबसाइट पर। तो हमने इसको एडिट किया। देखिए कॉन्टैक्ट के लिए दो ऑप्शन है। ये जो कोड हमने कॉपी किया है, एक तो हम यहाँ पर एक अगर HTML सर्च करेंगे तो वहां पर भी लगा सकते हैं, या फिर आप एक टेक्स्ट एडिटर इसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट एडिटर नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल अभी HTML सर्च किया। ये कह रहा है कि HTML का कोई कोड भी लगा सकते हैं, वो कोड ही है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया इसको एंड उसको पेस्ट कर दिया मैंने। जो हमने कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे आप। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, कोडिंग नहीं करना, बस पेस्ट करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पब्लिश। तो देखिए अभी एक फॉर्म क्रिएट हो गया है जिसमें आप फर्स्ट नेम अपना डाल सकते हैं, यूजर कोई भी अपना नेम, अपनी ईमेल आईडी, सब्जेक्ट एंड मैसेज, एंड उसके बाद सबमिट बटन है। ये सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो आपकी जो मेल आईडी होगी, वर्डप्रेस में जो हमने मेल आईडी यूज की डिफॉल्ट, उस पर चला जाता है। मेल आईडी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक कॉन्टेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और इसको हम डिजाइन भी अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमें फॉर्म मिला है वो हमने यहाँ पर लगाया है, हम अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग। कोई कोडिंग नहीं करना आपको। ठीक है, तो कुछ भी आपको चेंजेस करना है, इस फॉर्म के अंदर चेंजेस करना है, तो आप कॉन्टैक्ट वाला जो प्लगइन है उसमें ऑप्शन देता है कि आपको मोबाइल नंबर नहीं रखना, आप रिमूव कर सकते हैं वहां से। आपको नेम नहीं रखना, आप रिमूव कर सकते हैं, या कुछ और ऐड ऑन करना है फॉर्म में, वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आया हो कि इस तरीके से हम यहाँ पर वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। देखिए डिजाइनिंग पार्ट एक ऐसा होता है कि आपको 30 मिनट्स में या 1 घंटे में आप कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रिएटिविटी का पार्ट है, आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कोई भी अगर डिजाइनिंग करते हैं। बट वर्डप्रेस के अंदर क्या है, मेरे कहने मुताबिक कि वर्डप्रेस के ऊपर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप इजी तरीके से एक प्रोसेस, आप बहुत अच्छा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप प्लगइन का यूज करिए और अपनी वेबसाइट को डिजाइन करिए, और आप 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर वेबसाइट या कुछ घंटों के अंदर वेबसाइट आप रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना ही करेंगे। इसके अंदर एक सिंपल सा बेसिक सा पेज क्रिएट करके मैंने आपको बताया है वर्डप्रेस के अंदर। एंड मुझे लगता है आप लोग एक डोमेन होस्टिंग लीजिए, और कोई भी फ्री भी आती है, फ्री भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है फ्री डोमेन होस्टिंग प्रैक्टिस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। एंड उस पर फिर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके एंड डिजाइनिंग करिए, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाइए, जिसका भी बिजनेस है आप बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Yeah, thank you, Sachin, for your presentation, and I hope it was nice and engaging. So now we are open for the Q&A session. You may raise your hand, type your question in the chat box, or even directly unmute yourself and ask question. I think we don't have any questions from the audience. So thank you so much, Sachin, Jitendra, for being here. And it was such a nice session and very informative session. So we'll meet again with some new topic. Uh, thank you again, and just enjoy your Sunday. And we'll meet in the next session. Thank you so much. थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। Thank you, everybody.